So let us start. So today we are talking about the relationship among portfolio management, program management, project management, and organizational project management. Now, one thing I need to make clear that previously there used to be just the project management to be in the scope. People did not have much of an understanding of what a program or a portfolio might be. Now that you understand, अब हमने अभी discuss भी किया what a program is and what a portfolio is. So the skill, the art of managing those would be categorized as project management, program management, and portfolio management. But the whole of this block of managing change in an organization, program management, and portfolio management put together is usually called organizational project management. You see, when we only had PMBOK, a guide to project management body of knowledge, that only applied to project management, and although there was some description about program and portfolio there, but there was no mechanism of understanding what the program and portfolio is and how do they work. Now we have got a proper mechanism. We have got a proper standard for that. And as we discussed in the definition of program, that there was a lot of misunderstanding about programs. People used to call large projects as programs, and sometimes the word portfolio is also mistaken. You know, normally the word portfolio is associated with the financial portfolio, and people do not consider the portfolio as a portfolio of projects and programs. So, as we have already seen how they are located in a hierarchical diagram, portfolio being on top and under it there might be programs and then the projects. So this whole thing is called organizational project management, and managing these three items is not enough. There need to be a glue to put it all together, and that fourth item is called organizational enablers. So we need to have some work of organizational project management, like we had other work in program management, like program activities and other things. Similarly, we will have some work, other work in portfolio management. And if we look at it from the perspective of organizational project management, we will have other work, which is here called the organizational enablers. जी जिशान. मेरा क्वेश्चन है कि जो है वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अभी तक की जो मेरी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हुई है उसमें जो प्रोजेक्ट और जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है ये जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की डोमेन में आता है। जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है वो पीएमओ मैनेज कर रहा है, लेकिन उसमें डेफिनेटली प्रोजेक्ट मैनेजर्स की बड़ी इन्वॉल्वमेंट है, और जो प्रोजेक्ट्स हैं वो तो प्रोजेक्ट मैनेजर्स कर रहे हैं। जो प्रोग्राम मैनेजमेंट है वो अगर उसमें जो है वो फोकस बेनिफिट्स है, तो वो जो बेनिफिट्स ड्राइव है उनकी डेफिनेशन और उन पे फॉलो अप्स वो मोर लाइक लीडर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो फंक्शनल लीडर्स हैं उनकी। अब मेरा सवाल ये है कि जो है वो अगर कोई जो है वो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में जाना चाहे तो उसके लिए जो है वो जो प्रोग्राम मैनेजमेंट का नॉलेज है या प्रोग्राम मैनेजमेंट की जो सर्टिफिकेशन है वो कितनी उसमें जो है वो जरूरी है उसमें, क्योंकि जो है वो ओके, बात यह है कि पहली बात तो यह है कि आप जो पीएमओ को इसके साथ रिलेट कर रहे हैं और जो डेफिनेशन आपने दी कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में क्या चीज प्रोग्राम है, क्या चीज पोर्टफोलियो है, दैट माइट नॉट बी अ यूनिवर्सल डेफिनेशन. एग्जैक्टली. सो वी नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड कि ये चीजें है क्या, आपस में इंटरेक्ट कैसे करती हैं, और पीएमओ क्या भला है. पीएमओ को ऐसे ही हम रिलेट नहीं कर सकते कि जी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में चूंकि पीएमओ इस लेवल पे एग्जिस्ट करता है इसलिए यही शायद वाहिद तरीका है पीएमओ का. पीएमओ इज अ कंप्लीटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट एंड इट कुड बी एनीवेयर. पीएमओ प्रोजेक्ट लेवल पे भी एग्जिस्ट कर सकता है, प्रोग्राम लेवल पे भी एग्जिस्ट कर सकता है, पोर्टफोलियो लेवल पे भी, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल के ऊपर भी. तो पीएमओ की एक पहले से प्री डिटर्मिन्ड नहीं है कि जी पीएमओ जो है वो सिर्फ प्रोग्राम को देखेगा या पोर्टफोलियो को देखेगा.
तो ये पीएमओ को तो अभी बीच में से निकाल दें, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं कि पीएमओ कहाँ फिट होता है। अभी हम सिर्फ ये देखते हैं कि ये जो डिफरेंट किस्म की मैनेजमेंट है ये कैसे हैपन होती हैं। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे आपने पिछला ये एक चार्ट था हमारा, एक मिनट में अगर उधर तक पहुंच सकूं, जिसके अंदर वो हायरार्की दिखाई गई थी, अगर आप उसको मद्देनजर रखें, कहाँ था ये वाला, एक मिनट में, आपको ये उतनी नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं सर, हमें सेम पुरानी स्लाइड नजर आ रही है। कनेक्शन अभी स्लो है, तो वो भी कुछ देर में आपके सामने आएगा। वही वही मैं इस चार्ट की बात कर रहा हूँ जिसके अंदर ऊपर सबसे पोर्टफोलियो दिखाया गया, उसके नीचे सब पोर्टफोलियो, प्रोग्राम, सब प्रोग्राम, प्रोजेक्ट, सब प्रोजेक्ट्स वगैरह वगैरह, इस तरीके की सारी चीजें दिखाई गई। तो बुनियादी तौर पे वो है हायरार्की आपकी। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये सब चीजें वाकई एक दूसरे की सबऑर्डिनेट हैं? क्या प्रोजेक्ट हमेशा प्रोग्राम का सबऑर्डिनेट होता है? तो जवाब ये है कि प्रोजेक्ट इंडिपेंडेंट भी एग्जिस्ट कर सकता है। और उसको हम कैसे शो करते हैं? अगर एक प्रोजेक्ट इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करता हो, तो ये वाला प्रोजेक्ट आप देख सकते हैं, पता नहीं कर्सर आपको नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? डिले है। टॉप पे देखें, पोर्टफोलियो के राइट साइड पे जो प्रोजेक्ट बना हुआ है इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट है। ये मैंने कल भी बात की थी कि इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स कैन एग्जिस्ट डायरेक्टली अंडर द पोर्टफोलियो। इस बात को तो अंडरस्टैंड करते हैं ना जी? जी सर। ओके। लेकिन इस सारे सिनेरियो को समझने के लिए आप अगर इस सारी चीज के ऊपर इमेजिन करें कि एक तार है, एक लाइन है, जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं या स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट है, और ये जो कुछ भी इसके अंदर दिखाया जा रहा है इस डायग्राम के अंदर, ईच एंड एवरी आइटम इज हुक्ड टू दैट वायर। सो दिस इज ओनली, मैं ऑर्गेनाइजेशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का डायग्राम पूरा आपको दिखा रहा हूं, और इसमें जो पोर्टफोलियो है वो भी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के मकासद को पूरा करने के लिए काम कर रहा है, इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट भी यही काम कर रहा है, प्रोग्राम भी यही काम कर रहा है, इवन जो पोर्टफोलियो है उसके सब पोर्टफोलियोज हैं वो भी यही काम करें। तो मतलब एवरीथिंग इज एक्चुअली अलाइन टुवर्ड्स द स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव। नाउ द क्वेश्चन इज कि डायरेक्ट अलाइनमेंट किसकी है और इनडायरेक्ट अलाइनमेंट किसकी है? ऑल्दो आपको हायरार्की में तो ये नजर आ रहा है सब कुछ पोर्टफोलियो को जवाब दे, बट दिस इज नॉट कोई हार्ड वर्ड किस्म का लिंक नहीं है। ये पोर्टफोलियो बुनियादी तौर पे सिर्फ उनकी प्रायोरिटीज सेट कर रहा है, उनके बिजनेस केसेस बना रहा है, और रिकमेंडेशन दे रहा है टॉप लेवल मैनेजमेंट को कि कौन सा प्रोजेक्ट या कौन सा प्रोग्राम शुरू किया जाए। असल डिसीजन जो है वो स्ट्रेटेजिक डिसीजन है कि किस प्रोजेक्ट को शुरू किया जाएगा, यानी वो पोर्टफोलियो की रिकमेंडेशन के मुताबिक करे या ऑर्गेनाइजेशन की जो जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है वो के अलावा फैसला कर दे। बात सिर्फ इतनी है कि एवरीथिंग हैज टू बी इन अलाइनमेंट विद द स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव। नाउ पोर्टफोलियो का अपना स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है। पोर्टफोलियो का क्या है कि जितनी फंडिंग अवेलेबल है उसको जस्टिफाइबली इस्तेमाल करना और मोस्ट एफिशिएंटली और इफेक्टिवली इस्तेमाल करना, शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज को बैलेंस आउट करना प्रायोरिटी के हिसाब से, नए प्रोजेक्ट्स को देखना कि वो कौन से प्रोजेक्ट्स या प्रोग्राम शुरू किए जा सकते हैं, उनके बिजनेस केसेस बनाना, पुरानों को असेस करते रहना कि कोई चीज ऐसी तो नहीं है, कोई ऐसा प्रोजेक्ट या प्रोग्राम जो अब हमारे लिए उतना सूदमंद ना रहा हो और जिसको प्रायोरिटी में नीचे कर देना चाहिए या शायद खत्म ही कर देना चाहिए। इस तरह के जो काम हैं ये पोर्टफोलियो कर रहे हैं। आप पोर्टफोलियो को बहुत ताकतवर भी बना सकते हैं, आप उसको कमांडर भी बना सकते हैं सारे प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट्स का, और ऐसा भी मुमकिन है कि वो प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम्स जवाबदेह पोर्टफोलियो को ना हो और डायरेक्टली स्ट्रेटजी को हो, इसमें भी कोई एतराज नहीं है। लेकिन उस सूरत में पोर्टफोलियो जो है वो एक तरह का एक्सपर्ट ऑफिस जरूर रहेगा, एक सीनियर ऑफिस जरूर रहेगा जो रिकमेंडेशंस ऑर्गेनाइजेशन को देगा कि किसके साथ क्या सलूक किया जा सकता है। बात सिर्फ इतनी है कि आप कितनी डेलीगेशन पोर्टफोलियो को देना चाहते हैं, सारी ताकतें पोर्टफोलियो के हाथ में देनी है या नहीं देनी। अभी तक मैंने पीएमओ की कोई बात नहीं की।
अभी तक मैं सिर्फ इनकी अलाइनमेंट की बात कर रहा हूं। अच्छा जी, जो इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट है वो तो डायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी से अलाइंड है और उसके कोई मकासद पूरे कर रहा है। जो प्रोग्राम है वो भी ऐसा ही कर रहा है, लेकिन जो प्रोजेक्ट्स प्रोग्राम के अंदर हैं वो डायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन को जवाबदेह नहीं है, वो अपने प्रोजेक्ट को जवाबदेह हैं, सॉरी प्रोग्राम को जवाबदेह हैं, और प्रोग्राम अपनी अलाइनमेंट सेट कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्गेनाइजेशन ने स्ट्रेटजी का एक टुकड़ा प्रोग्राम के हवाले कर दिया कि भाई तुम ये वाली स्ट्रेटजी पूरी करो। मिसाल के तौर पे पूरी हुकूमत चल रही है, उसमें से एक स्ट्रेटजी थी कि हुकूमत को जहां विजन और मिशन है, जहां हुकूमत को हम लेके जाना चाहते हैं या मुल्क को जहां लेके जाना चाहते हैं, उसमें से एक पार्ट है एजुकेशन सिस्टम का इंप्रूव होना। उन्होंने कहा भाई एजुकेशन वाला प्रोग्राम तुम ले लो, और एजुकेशन के प्रोग्राम की स्ट्रेटजी बनाना प्रोग्राम मैनेजर का काम है, और उस स्ट्रेटजी के मुताबिक अपने नीचे सब प्रोग्राम्स या प्रोजेक्ट्स को जन्म देना और उनको चलाना, ये सब प्रोग्राम मैनेजर का काम है। ये प्रोग्राम पोर्टफोलियो वाला जो है वो असेस करेगा। जैसे प्लानिंग कमीशन बैठी हुई है, बुनियादी तौर पे प्लानिंग कमीशन का यही तो काम है कि उसके नीचे जितने भी मुल्क में प्रोग्राम्स चल रहे हैं और प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और पोर्टफोलियो चल रहे हैं, उन सब का असेसमेंट करते रहना, उनकी इजाजतें जो हैं वो रिकमेंड करना और बाकी तमाम सिलसिले। लेकिन हर प्रोजेक्ट और हर प्रोग्राम और हर सब पोर्टफोलियो दरअसल ऑर्गेनाइजेशन के मकासद के या बेनिफिट के लिए ही किए जा रहे हैं। तो ये चीज जो है ये इंपॉर्टेंट है। अब यहीं पे इसी डायग्राम पे मैं एक और चीज भी डिस्कस कर लेता हूं। जो आपने पीएमओ की बात की, पीएमओ जैसे मैंने कहा कि ये कोई एक प्री डिफाइंड जगह नहीं है कि जहां पीएमओ हो सकता है। बात सिर्फ इतनी सी है कि जहां आप ये फील करें कि आपको मैनेज करने में दिक्कत हो सकती है और आपको उस लेवल को मैनेज करने के लिए कुछ इंतजाम चाहिए, कोई असिस्टेंस चाहिए, आप वहां पे एक मैनेजमेंट ऑफिस टाइप की या सपोर्ट ऑफिस टाइप की चीज बना सकते हैं। दिस कैन इवन हैपन इन इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट। एक प्रोजेक्ट, सिर्फ एक प्रोजेक्ट है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज्यादा काम है उसके अंदर, प्रोजेक्ट मैनेजर ये समझता है कि मैं इसके अंदरूनी कामों को हैंडल नहीं कर पाऊंगा अकेला, वो अपनी असिस्टेंस के लिए एक बंदा रख लेता है, दो बंदे रख लेता है, एक छोटा सा ऑफिस बना लेता है, एंड ही स्टार्ट्स कॉलिंग इट अ प्रोजेक्ट सपोर्ट ऑफिस और अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस दैट विल बी अ पीएमओ फॉर द मैटर्स ऑफ द प्रोजेक्ट ओनली। प्रोजेक्ट के काम करने के लिए, प्रोजेक्ट के मकासद के लिए, उसकी रिपोर्टिंग के लिए, उसके अहकामात नीचे ऊपर ले जाने के लिए, इंफॉर्मेशन पास करने के लिए। तो प्रोजेक्ट के लेवल पे जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो गाइडलाइंस हैं, जो पॉलिसीज वगैरह हैं, उनका ऊपर नीचे करने का इंतजाम सारा पीएमओ संभालेगा। वो पीएमओ जो प्रोजेक्ट के अंदर है, उसको पीएमओ कहें, आप प्रोजेक्ट ऑफिस कहें, आप प्रोजेक्ट सपोर्ट ऑफिस कहें, कुछ भी आप कह लें। तो ये तो हो गया कि कम्प्लेक्सिटी की वजह से मैंने प्रोजेक्ट के अंदर ही ये चीज बना दी। दूसरा, प्रोग्राम जो है, प्रोजेक्ट में तो मैंने कहा ना कि कहीं कम्प्लेक्सिटी होगी तो आप बनाएंगे, नहीं हुई तो प्रोजेक्ट मैनेजर कहेगा ठीक है मैं खुद ही हैंडल कर लेता हूं। प्रोग्राम डेफिनेटली उसके अंदर एक से ज्यादा प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कम्प्लेक्सिटी ना कहने के बावजूद भी ज्यादा है, तो प्रोग्राम में तो एक जरूरत होगी कि प्रोग्राम के अंदर कोई एक इस तरह की बॉडी एग्जिस्ट करती हो जो सारे प्रोजेक्ट्स का हिसाब किताब रखे, उनकी रिपोर्ट, प्रोग्रेस रिपोर्टिंग करे, मतलब जो प्रोग्राम मैनेजर की असिस्टेंस में जो काम किए जा सकते हैं वो करने के लिए आपको यहाँ पे एक प्रोग्राम ऑफिस की जरूरत पड़ सकती है। इसको आप प्रोग्राम ऑफिस कहें, प्रोग्राम सपोर्ट ऑफिस कहें, पीएमओ कहें, भले कुछ भी कहें, मगर जरूरत के मुताबिक आप यहाँ पर भी पीएमओ बना सकते हैं। इसी तरह टॉप लेवल पे जो पोर्टफोलियो की बात होती है, पोर्टफोलियो ने भी तो बहुत से काम करने हैं। पोर्टफोलियो के कामों को आसान बनाने के लिए, पोर्टफोलियो की सपोर्ट के लिए, कि उसने जनाब कोई फिजिबिलिटीज बनानी है, कोई असेसमेंट्स करनी है, कोई रिसोर्स शेयरिंग का बंदोबस्त करना है, वट एवर इट्स जॉब इज, टू मेक इट इजियर यू माइट ऑल्सो हैव अ पीएमओ एट पोर्टफोलियो लेवल। नाम जो मर्जी रख लें आप उसका, लेकिन पीएमओ एक वहां पर भी हो सकता है। तो ये वाला पीएमओ जो होगा ये प्रोजेक्ट और प्रोग्राम्स की रिपोर्टिंग के लिए नहीं होगा, उसका मेन मकसद ये नहीं होगा, उसका मेन मकसद होगा पोर्टफोलियो वाले कामों में असिस्ट करना।
इसी तरह एक पीएमओ आपके ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे, जिसके कुछ लोग स्ट्रेटेजिक पीएमओ कहते हैं और कुछ लोग उसको एंटरप्राइज पीएमओ भी कहते हैं, दैट कुड आल्सो एग्जिस्ट, जो कि पोर्टफोलियो से भी ऊपर का लेवल है और डायरेक्टली फीड कर रहा है चीफ एग्जीक्यूटिव को और उसकी सपोर्ट में बना हुआ है, उसके मकासद डिफरेंट है। ये तो हो गया कि ये जो फ्रेमवर्क हम ऑर्गेनाइजेशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, इसमें पीएमओ कहां कहां बन सकते हैं। इसके अलावा भी पीएमओ एग्जिस्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ये डिसाइड किया गया कि जनाब जितने भी पोर्टफोलियो चल रहा है, प्रोजेक्ट प्रोग्राम्स वगैरह चल रहे हैं, वो अपना काम करते रहें, लेकिन हम एक अलहदा से एक पीएमओ बनाएंगे जो इन तमाम प्रोजेक्ट्स प्रोग्राम्स की खबरगिरी करेगा और पोर्टफोलियो के अंडर नहीं होगा, बल्कि वो डायरेक्टली स्ट्रेटेजिक बॉडी को, एग्जीक्यूटिव बॉडी को या सीईओ को रिपोर्ट करेगा। ऐसा पीएमओ भी हो सकता है। फिर हमने ये भी देखा, जैसे मोबीलिंक में और बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस में एग्जिस्ट करता है पाकिस्तान में, कि हर डिपार्टमेंट के पास अपना अपना पीएमओ है। हर डिपार्टमेंट का हेड जो है वो अपना अपना छोटा सा पोर्टफोलियो मैनेज कर रहा है, अपने प्रोग्राम्स और अपने प्रोजेक्ट चला रहा है और अपना अपना पीएमओ मैनेज कर रहा है। और कभी कभी ऐसा भी हमने देखा कि सारे डिपार्टमेंट्स के अपने अपने पीएमओ हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन का बड़ा वाला पीएमओ है, वो उसको सारे पीएमओ उसको रिपोर्ट कर रहे हैं। तो मेरा ये सारी कहानी सुनाने का मकसद ये था कि पीएमओ एक ऐसी बॉडी है जो असिस्टेंस के लिए किसी भी लेवल पे क्रिएट की जा सकती है। जिस लेवल पे भी वो एग्जिस्ट करती हो, वो उस लेवल को असिस्ट करने के लिए उस डोमेन के अंदर, उससे उससे नीचे की डोमेन के अंदर अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करती है। और ये असिस्टेंस बॉडी है, ये कोई अथॉरिटेटिव बॉडी नहीं है। इसकी ताकत वही है जो इसके बॉस की। अगर सीईओ के लेवल पे एक पीएमओ एग्जिस्ट करता है तो सीईओ की मर्जी है, उसको जितनी ताकत देना चाहता है दे दे, लेकिन दरअसल वो सीईओ की ताकत है। वो भले उसको सिर्फ इस काम के लिए इस्तेमाल करे कि भाई सिर्फ मुझे रिपोर्ट करो, तुम्हारे पास कोई डिसीजन पावर नहीं है। और वो ऐसा भी कह सकता है कि अच्छा मैं बहुत बिजी हूं, इस लेवल के डिसीजन आप खुद ही ले लिया करो। तो पीएमओ इस पूरे सेटअप के अंदर जो हम पोर्टफोलियो, प्रोग्राम और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, कहीं भी एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन ये कोई उसकी इंटेग्रल बॉडी नहीं है कि जी लाजमी इस जगह के ऊपर एक पीएमओ एग्जिस्ट करेगा। जी, यहां तक कुछ बात क्लियर हुई है? मैं आगे मजीद भी एक्सप्लेन करता हूँ। जी जिशान। जी सर, क्लियर है, थैंक यू। ओके, लेट मी गेट बैक टू वेयर वी वर। सर एक कमेंट इफ आई मे। जी सर आपने बड़ी अच्छी बात की, काफी क्लैरिटी है इस इंटरेक्शन के ऊपर, ये पोर्टफोलियो, प्रोजेक्ट और प्रोग्राम के ऊपर। बट आई गेस लाइक यू पॉइंटेड आउट, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में डिफरेंट होता है और इट्स नॉट एप्लीकेबल एज इट्स डॉक्यूमेंटेड हियर। जैसे अगर मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो हमारे यहाँ जो प्रोजेक्ट इनटेक्स होते हैं, मतलब पोर्टफोलियो या स्ट्रेटेजिक लेवल पे, एग्जीक्यूटिव लेवल पे जो भी उन्होंने इनिशिएटिव्स परस्यू करने हैं फॉर एनी गिवन ईयर, फॉर एग्जांपल फॉर 2017, हमारे जो जिस मैं हूँ, दैट्स कॉल्ड बिजनेस सॉल्यूशन डिलीवरी, और यू मे कॉल इट आईटी फ्रॉम अ ब्रॉडर सेंस। तो बेसिकली उसके जो हेड है उनको कैस्केड कर देते हैं कि दीज आर द इनिशिएटिव्स दैट वी वांट टू परस्यू फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर, एंड देन वी हैव टू प्रायोरिटाइज, देन वी हैव टू allocate it with the help of PMO to the relevant project managers and we deliver it out. अब जो only concern जो मुझे है उसके अंदर वो सिर्फ ये है कि हमारा जो डिपार्टमेंट है जहाँ पे हम PMO को रिपोर्ट कर रहे हैं, we are 9 project managers under that umbrella. But on top of it, we are having 2 program managers who are not reporting directly to the PMO and they are being recruited by the business units themselves. अब वो business units को directly report कर रहे हैं, वो उनके लिए कोई initiatives pursue कर रहे हैं, and I don't believe there is a program management office for those PGM program managers. तो ये hierarchy, does it make? बिल्कुल परफेक्टली। देखें बात ये जरूरी तो नहीं है कि हर लेवल के ऊपर पीएमओ बनाया जाए, जरूरी तो नहीं है। अगर वो सिर्फ 2 ही प्रोग्राम मैनेजर्स हैं तो प्रोग्राम मैनेजर, देखें एक और भी सेटअप एग्जिस्ट करता है जिसको प्रोजेक्ट या प्रोग्राम मैनेजर जवाबदेह होता है। हर एक का एक स्पॉन्सर भी होता है। प्रोजेक्ट के ऊपर उसका एक स्पॉन्सर है, दरअसल उसका स्पॉन्सर टोटली जिम्मेदार है उस प्रोजेक्ट के हवाले से। इसी तरह प्रोग्राम मैनेजर के ऊपर अगर एक स्पॉन्सर एग्जिस्ट करता है
तो वो टोटली जिम्मेदार है, वही सारे डिसीजन दे सकता है, सब कुछ कर सकता है। पीएमओ की तो कोई ऐसी ताकत नहीं है कि वो डिसीजंस दे सके। वो तो सिर्फ एक रिपोर्टिंग बॉडी है, उसको आप सारी अपनी रिपोर्टें जमा कराते हैं, वो उसको समराइज करता है, कंसोलिडेट करता है और एक अपने जो जिसको रिपोर्ट कर रहा है उसको पेश कर देता है। डिसीजन उसका होता है। मैंने कहा कि जिसका डिसीजन होता है, अगर वो चाहे कि पीएमओ को ज्यादा ताकत दी जाए तो वो अपनी ताकतें कुछ उसको दे देता है, डेलीगेट कर देता है। तो वो कोई पीएमओ की इनहेरेंट ताकत नहीं होती वो उसको मिली हुई ताकत होती है, डेलीगेटेड ताकत होती है। और वो डेलीगेटेड पावर्स जो होती हैं वो उसे ली भी जा सकती हैं, दी भी जा सकती हैं। पीएमओ को कोई ये फर्ज नहीं है कि पीएमओ जो है वो आपको हुक्म दे सकता है या आपको डायरेक्ट कर सकता है। पीएमओ इनहेरेंटली उसकी कोई ऐसी कैपेबिलिटी नहीं है। वो सिर्फ एक क्लरिकल ऑफिस है। उसका काम सिर्फ आपसे रिपोर्टें लेके समराइज करके ऊपर पेश करना है और ऊपर के अहकामात नीचे पहुंचाने हैं। अब वो बॉस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कहे कि यार मैं बहुत बिजी हूं, तो आप जरा इस लेवल तक के डिसीजन आप ले लिया करो। तो पीएमओ को कभी ये ना कंसिडर करें कि जी ये कोई बॉस है। आपका बॉस आपका स्पॉन्सर है। हर प्रोजेक्ट का एक स्पॉन्सर है, हर प्रोग्राम का एक स्पॉन्सर है। तो स्पॉन्सर जवाबदेह है अपने तमाम अमाल के लिए ऑर्गेनाइजेशन के हेड को। जी कुछ बात क्लियर हुई? आपकी बात बिल्कुल बजा है सर। मेरा जी जी सर, बिल्कुल आपकी बात वैलिड है। मेरा सिर्फ पॉइंट ये था सर कि इन माय ऑर्गेनाइजेशन वी आर फॉलोइंग पीएम बॉक, मतलब ऑल दी आर्टिफैक्ट्स और जो कुछ भी बनता है वो पीएमपी के रेफरेंस से बनता है। और जो हमारा पीएमओ ऑफिस है, दे even though they are helping out in reporting, but they are also helping out in making sure that every project is sort of following the PMP guidelines, सारे artifacts जो हैं properly documented हैं, everything is, there are proper procedures for it. तो जो दो program managers business units में हैं, retail or whatever, I mean the confusion I have is that they are also delivering the programs or projects or whatnot, but they don't have those processes which we are having in under the umbrella of the PMO. So does it cause any sort of ambiguity or mismatch in terms of how they are delivering the projects as opposed to us? As far as the projects in your organization are concerned, all those projects are governed by PMBO के। आपने खुद कहा कि हम उन्हीं की गाइडलाइंस को, पीएमआई की गाइडलाइंस को इस्तेमाल करते हैं। तो आप अपने प्रोजेक्ट्स में आ गाइड टू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बॉडी ऑफ नॉलेज इस्तेमाल कर रहे हैं। एग्रीड, वही आर्टिफैक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल सर। इसका मतलब ये हुआ कि आपके जो पीएमओ एग्जिस्ट करता है वो प्रोजेक्ट्स के लेवल का है, प्रोग्राम के लेवल का नहीं है। दैट इज एग्जैक्टली व्हाई योर प्रोग्राम मैनेजर्स आर नॉट रिपोर्टिंग टू दिस पीएमओ। मैंने कहा ना कि टाइप होती है पीएमओ की। आपके पीएमओ की टाइप जो है वो प्रोजेक्ट पीएमओ है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस है। अब अगर वो ऑर्गेनाइजेशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होती तो और बात थी, प्रोग्राम मैनेजमेंट ऑफिस होता तो और बात थी। इट डिपेंड्स अपॉन कि उसको आपने फंक्शन क्या दिया। तो मुझे ये लग रहा है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने उसको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का फंक्शन दिया है। दैट इज एग्जैक्टली व्हाई द प्रोग्राम मैनेजर्स आर नॉट रिपोर्टिंग टू दैट। और देखा भी जाए तो जो प्रोजेक्ट्स हैं वो अपनी प्रोग्रेस के हवाले से तो पीएमओ से बात कर रहे हैं, लेकिन अपने प्रोग्राम के हवाले से अपने प्रोग्राम मैनेजर को जवाब देंगे ना। वो अपने बेनिफिट्स निकालेगा, ये करेगा, वो करेगा। जो आपका पीएमओ है वो बेनिफिट्स को एनालाइज करने या उसकी कैपेबिलिटी नहीं रखता। उसकी कैपेबिलिटी आपका रिस्पेक्टिव प्रोग्राम मैनेजर रखता है। तो प्रोग्राम मैनेजर जो है वो आपका स्पॉन्सर है। आप सारे प्रोजेक्ट जो एग्जिस्ट करते हैं वो किसी ना किसी प्रोग्राम से रिलेट करते हैं, तो उसका कोई ना कोई प्रोग्राम मैनेजर होगा, तो वही उसका स्पॉन्सर होगा। जो नहीं किसी प्रोग्राम से रिलेट करता उसका तो प्रोजेक्ट स्पॉन्सर होगा कोई ना कोई। तो कोई ना कोई स्पॉन्सर एग्जिस्ट करता है हर प्रोजेक्ट के पीछे। जो एक्सक्लूसिवली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है और वो प्रोग्राम को रिपोर्ट नहीं कर रही, तो वो तो इस पीएमओ के थ्रू रिपोर्टिंग ऊपर जाएगी और वो अपना मसला हल कर लेगी। लेकिन जो प्रोग्राम के थ्रू है, तो प्रोग्राम मैनेजर का ऑब्जेक्टिव डिफरेंट है ना जी। उसने तो बेनिफिट में कन्वर्ट करना है, सस्टेन करना है। और ये सारा कुछ करने के लिए अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन अभी इतनी मैच्योर नहीं है कि इस लेवल का एक पीएमओ या पीजीएमओ एग्जिस्ट किया, बनाया जाए, तो शायद इस वजह से एग्जिस्ट ना करता हो। या ये भी हो सकता है कि बहुत ज्यादा प्रोग्राम्स नहीं चल रहे, एक दो प्रोग्राम चल रहे हैं, तो वो कहते हैं जी ठीक है, प्रोग्राम मैनेजर, दो आदमियों की रिपोर्ट लेना कौन सा बड़ा मसला है। दो प्रोग्राम मैनेजर सीईओ के पास जाएंगे, उसे बताएंगे सर हमने ये कर दिया है, और वो उसे समझ भी लेगा।
लेकिन अगर 50 प्रोग्राम मैनेजर होते तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता कि इनको संभाला जा सके। तो उसके लिए फिर हमें एक ऐसा ऑफिस चाहिए होता जो प्रोग्राम के मामलात के लिए मैनेजमेंट ऑफिस होता। ठीक है सर। सर एक आखिरी बात, इवन दो आपने इस पे काफी बात की है, लेकिन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की जब आप बात करते हैं, आई एम नॉट एंटायरली क्लियर विद इट। जैसे अगर मैं अपनी लीडरशिप की बात की जिसमें सीईओ वगैरह आ जाएगा, सीईओ आ जाएगा, बट पोर्टफोलियो के अंदर लाइक वी हैव द सीनियर वाइस प्रेसिडेंट्स इन डिफरेंट डोमेन्स जो together with the CEO they are making the decisions as to which project should be pursued or business justification kiski strong hai for whichever year. So does that group in the broader sense constitute the portfolio management or is it any different? ओके, देखें जरा थोड़ा सा पर्सपेक्टिव ठीक करना है हमने। आप तकरीबन ठीक कह रहे हैं, लेकिन मसला पता है क्या है? मसला ये है कि जो आपके ऑर्गेनाइजेशन का सीईओ है या एग्जीक्यूटिव स्ट्रेटेजिक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, क्या उसको दुनिया में और कोई काम नहीं है प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम्स के अलावा? कोई और उनकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई और ऑपरेशन नहीं चल रहा, कोई और सिस्टम नहीं चल रहा? असल में जो ऑपरेशंस होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के वो मच वाइडर होते हैं, और ये स्ट्रेटेजिक बॉडी जो है ये सारी चीजों को देख रही होती है, सारे ऑपरेशंस को, सारे चेंज रिलेटेड जितने ऑर्गेनाइजेशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के इकदाम हैं, सब चीजों को ओवरऑल देख रही है। लेकिन जो काम पोर्टफोलियो को हम देना चाह रहे हैं वो बड़ा स्पेसिफिक है, वो चेंज रिलेटेड काम है ओनली। तो पोर्टफोलियो को हम एक अलग ऑफिस के तौर पर ट्रीट करें जो बैठ के तब्दीलियों को देखता रहता है, कौन सी तब्दीली लानी चाहिए, कैसे लानी चाहिए, उसकी फिजिबिलिटियां बनाता है। मतलब ये होम ऑन करता है चेंज को, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज को, और उसके इनिशिएटिव्स को जन्म देता रहता है या उनको एनालाइज करता रहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो स्ट्रेटेजिक बॉडी है वो तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का काम अदा नहीं करेगी। ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट माइट बी अ लेवल लोअर देन द एग्जीक्यूटिव बॉडी। ऑल्दो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का काम स्ट्रेटेजिक नेचर का है, मैं ये भी कह सकता हूं कि जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसमें से 2 वाइस प्रेसिडेंट जो हैं वो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट को देखेंगे, या 3 लोग जो हैं वो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के पार्ट होंगे, और इसके अंदर पोर्टफोलियो में उन 3 के अलावा और भी कुछ लोग होंगे जिनका डेडिकेटेडली ये काम होगा कि वो प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम्स की असेसमेंट्स को देखते रहें। लेकिन अगर आप स्ट्रेटेजिक बॉडी को, जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, उसको पोर्टफोलियो के सारे काम करवाने शुरू कर देंगे तो फिर ऑर्गेनाइजेशन को कौन चलाएगा? ऑर्गेनाइजेशन की जो डिसीजन मेकिंग्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन के जो डे टू डे मसाइल हैं, उनका हैंडल करना, स्ट्रेटजियां बनाना, बाकी हिसाब किताब करना, ये कौन करेगा? तो हम उनको नहीं ये काम देना चाहते, हम उसके अंदर से ये एक ड्यूटी नीचे निकाल रहे हैं। मगर ये जो ऑर्गेनाइजेशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में सबसे टॉप पे चीज है वो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है, एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इज बैक टू बैक कनेक्टेड विद द स्ट्रेटजी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सर आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है एंड आई थिंक आई अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन, लेकिन प्रॉब्लम वही है कि जैसे मेरी ऑर्गेनाइजेशन में कोई डेडिकेटेड सॉर्ट ऑफ एक डिपार्टमेंट नहीं है व्हिच आई मे रिमेंबर एज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तो वो आई एम श्योर ये डिसीजन मेकिंग नहीं करता, उसके नीचे ही होता है शायद, लेकिन वो नाम नहीं है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, तो डिफिकल्ट टू फिगर आउट। नहीं, मैं समझ गया। देखें ये जो बातें मैं कर रहा हूं ना, ये तो मैं कर रहा हूं असूल के मुताबिक क्या होना चाहिए, लेकिन मैंने आपको ये बताया कि इवन पीएमबीओ के इज नॉट बीइंग फॉलोड फुली टू द लेटर एंड स्पिरिट इन एनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड। 100% अगर कोई मुझे कहे कि हम प्रोजेक्ट पीएमओ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बॉडी ऑफ नॉलेज इस्तेमाल करें, कोई भी नहीं कर रहा। कोई चीज कर रहा है, कोई चीज कर रहा है, और कोई दिस इज नॉट बैड ऑल्सो, क्योंकि पीएमबीओ के खुद कहती है कि मुझे जैसे चाहो टेलर कर लो। इसी तरह ये जितने स्टैंडर्ड्स हैं प्रोग्राम का, पोर्टफोलियो का, ये सब यही कहते हैं कि जनाब ये आपको हमने गुड प्रैक्टिसेस बता दी हैं, आप जैसे चाहें इसको टेलर कर लें अपनी जरूरत के मुताबिक। तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी जरूरत के मुताबिक सिस्टम को टेलर किया, गलत कुछ नहीं कर रहा है। अब हो सकता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में इतनी ज्यादा जरूरत ही ना हो अलहदा से पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ऑफिस बनाने की या पोर्टफोलियो मैनेज करने की, या एक आदमी को अलहदा से पोर्टफोलियो को मैनेज करने के लिए डेडिकेट करने की। उन्होंने कहा हो कि जी फॉर द टाइम बिंग हम संभाल सकते हैं, हमारी जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है वही पोर्टफोलियो के डिसीजन करेगी। लेकिन उनको अगर इसका वर्कलोड बढ़ा दिया जाए, अगर वो समझें कि अब पोर्टफोलियो का काम बहुत बढ़ गया है, तो शायद क्या यकीनन
आपकी ऑर्गेनाइजेशन अलग से एक बॉडी बनाने की बात करेगी, कुछ लोगों को डेडिकेटेडली इस काम के लिए अलग कर दिया जाएगा कि भाई आप पोर्टफोलियो संभालें, आप एग्जीक्यूटिव कमेटी में भी आ जाया करें, लेकिन ज्यादा काम आपका पोर्टफोलियो की तरफ है, उसकी रिपोर्ट आप किया करें, आप उसको रिप्रेजेंट किया करें। तो ऐसा हो जाएगा जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन उस लेवल पे पहुंचे। जनाब। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। मोस्ट वेलकम जी, मोस्ट वेलकम। राइट जी, आगे चलते हैं। ये तो खैर जनरल डिस्कशन थोड़ी सी हमने की। अभी ये देखें कि व्हाट एग्जैक्टली आर द रिलेशनशिप्स इस प्रोग्राम मैनेजमेंट के स्टैंडर्ड के हवाले से। एक मिनट, ये मेरा ख्याल है फिर थोड़ा हेल्ड हो गया। ओके जी, आई डोंट नो आपको ये स्लाइड आ रही है नजर? हाँ, अब आ गई। अच्छा, ये प्रोग्राम मैनेजमेंट की अगर हम बात करते हैं तो जैसे मैंने अभी हमने जो थोड़ी बहुत हल्की फुल्की डिस्कशन की है, अगर हमने पोर्टफोलियो, प्रोग्राम और प्रोजेक्ट का रिश्ता समझना है तो हमें ये समझना होगा कि इनके दरमियान क्या क्या चीजें कॉमन हैं और कहाँ कहाँ ये एक दूसरे के साथ क्लैश करते हैं या डिफरेंस कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करता है। ये बात अभी तक आपको समझ आ ही गई होगी कि प्रोजेक्ट की डोमेन कहाँ तक है, प्रोग्राम की डोमेन कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक जाती है, और पोर्टफोलियो क्या चीज है। अगर मैं इसको समराइज करूं तो प्रोजेक्ट बड़ा या छोटा हमेशा रिजल्ट करेगा किसी डिलीवरेबल या प्रोडक्ट में। प्रोग्राम बड़ा या छोटा हमेशा किसी बेनिफिट को रियलाइज करने की बात कर रहा होगा। पोर्टफोलियो हमेशा फाइनेंशियल बैलेंसिंग की बात कर रहा होगा, इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग कर रहा होगा रिगार्डिंग प्रोजेक्ट्स एंड प्रोग्राम। इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग का मतलब है कि वो उनकी फिजिबिलिटी भी देख रहा होगा, वो ये देख रहा होगा कहां किस प्रोजेक्ट या प्रोग्राम पे पैसा लगाना सबसे ज्यादा सूदमंद साबित हो सकता है। मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी से लिंक्ड है और ऑर्गेनाइजेशन का पैसा जाया नहीं करवाना चाहता। तो पोर्टफोलियो का फाइनेंशियल जरूर लिंकेज है, लेकिन ये जो पोर्टफोलियो, ये फाइनेंशियल पोर्टफोलियो नहीं है, ये बुनियादी तौर पे प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो कहलाता है। और या इसे प्रोजेक्ट एंड प्रोग्राम पोर्टफोलियो कहें, जो भी आप कहें, लेकिन दिस होल थिंग पुट टुगेदर इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ओपीएम। तो इस कंसेप्ट को, ओपीएम के कॉन्सेप्ट को मजीद समझने के लिए, ओपीएम जो है वो एक स्ट्रेटेजिक एग्जीक्यूशन फ्रेमवर्क है। मतलब मेरी जुबान में अगर आप कहें तो मैं ये कहूंगा कि तब्दीली लाने का जरिया, एक ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम को बदलने के लिए, उसकी प्रैक्टिसेस को बदलने के लिए, उसके तरीका कार को बदलने के लिए हमें जब कुछ करना पड़ता है तो वो ऑपरेशंस में एग्जिस्ट नहीं करता। वो तब्दीली पहले से ऑपरेशंस में एग्जिस्ट नहीं करती। ऑपरेशंस तो एसओपीज के मुताबिक चलते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। जो उसमें लिखा होगा ऑपरेशन वाले उसको फॉलो करने के पाबंद हैं। दे कैनॉट डू एनीथिंग बियॉन्ड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। वो खुद से कोई डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते। अगर ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम्स में किसी किस्म की भी तब्दीली लानी हुई, भले वो छोटी तब्दीली है या बड़ी तब्दीली है, दैट हैज टू बी ब्रॉट थ्रू दिस स्ट्रेटेजिक एग्जीक्यूशन फ्रेमवर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जो कि एनकम्पस कर रहा है तमाम चीजों को, पोर्टफोलियो को भी, प्रोग्राम को भी और प्रोजेक्ट को भी। तो इस सारे मैनेजमेंट के मैकेनिज्म के अंडर रहते हुए हम इन चीजों को, उन ड्रीम्स को कम ट्रू करते हैं, उन चेंजेस को ब्रिंग इन करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। लेकिन मसला एक और भी है कि although you might be an expert in project management and program management and portfolio management, but at the same time how to put it all together, putting it all together and letting it stay like that, we have to have certain support from some organizational practices which will bind the whole structure of projects, programs and portfolios together, and that is called organizational enabling practices. ऑर्गेनाइजेशनल एनेबलिंग प्रैक्टिसेस जो हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर हो सकता है, कुछ और चीजें जो कि आगे हम डिस्कस करेंगे। ये वो चीजें हैं जो ग्लू का काम करती हैं, इस सारे सिस्टम को बांध के रखती हैं, उसको डायरेक्शन देती हैं। ये क्या, इनकी वजह से अगर हम ऐसा करें तो कंसिस्टेंटली और प्रिडिक्टिवली हम कर सकते हैं
डिलीवर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी, ऑर्गेनाइजेशन के मकासद, ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी के एन मुताबिक मुसलसल हम काम कर सकते हैं, बेटर परफॉर्मेंस दे सकते हैं, बेटर रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, एंड अल्टीमेटली हम जिसे कहते हैं ना सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, कि हम मुसलसल खूब से खूब तर की तरफ जा सकते हैं और अपने कंपटीटर के मुकाबले में आगे ही आगे बढ़ सकते हैं मुसलसल। सो दिस इज द सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। हम सिर्फ एक दफा एडवांटेज लेके, लीड लेके नहीं दिखाना चाहते, हम इस लीड को मुसलसल रखना चाहते हैं और मुसलसल गैप बढ़ाते रहना चाहते हैं। तो अगर आप इतने फॉरवर्ड लुकिंग हैं, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन इतनी आला है, तो उसको फिर ये सब कुछ करना पड़ेगा, तब्दीली को एम्ब्रेस करना पड़ेगा। और तब्दीली को एम्ब्रेस करने के लिए ये पूरा फ्रेमवर्क जो है प्रोजेक्ट, प्रोग्राम और पोर्टफोलियोज का, अलॉन्ग विद देयर ऑर्गेनाइजेशनल एनेबलर्स, इन सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। ये है पूरी रेसिपी आगे बढ़ने की। और ये पोर्शन चेंज वाला है। और आप बेशक एक चीज जो हम डिस्कस नहीं कर रहे वो है ऑपरेशन, जो कि इस सारी चेंज के मैकेनिज्म से शायद 80 to 90 8 to 9 टाइम्स बड़ा है। और उसकी मैनेजमेंट एक अलग सब्जेक्ट है, ऑपरेशंस मैनेजमेंट जो है वो एक अलग सब्जेक्ट है। लेकिन उस सारे ऑपरेशन को इफेक्ट जो है ये तब्दीली करती है, चेंज मैनेजमेंट। और चेंज लाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में ये वाला सेटअप है हमारे पास, ऑर्गेनाइजेशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जिसके तहत हम ये सारा काम संभालते हैं। इसके बाद जनाब, ये जो तीनों किस्म की मैनेजमेंट है, ये हम पहले बात कर चुके हैं कि प्रोजेक्ट हो, प्रोग्राम हो या पोर्टफोलियो हो, हर चीज के लिए फर्ज है, लाजमी है कि वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी के साथ अलाइंड हों। अगर इनमें से कोई चीज किसी वक्त भी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी से अपना डायरेक्शन हटाती है या उसकी अलाइनमेंट खराब होती है, तो गड़बड़ है। देन वी आर ऑफ जा रहे हैं हम, और हम अपने स्कोप से बाहर जा रहे हैं, हम अपने मकसद से अलग हो रहे हैं, विच इज नॉट एग्जैक्टली डिजायर्ड। अब ये देखते हैं कि ये जो डिफरेंट किस्म की मैनेजमेंट हमने डिस्कस की हैं, ये किस तरह अपने आप को ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी के साथ अलाइन रख सकती हैं। पहली बात तो ये है कि पोर्टफोलियो की बात करें तो पोर्टफोलियो ने नए प्रोजेक्ट्स को, प्रोग्राम्स को जन्म देना है। इसका मतलब है इसने मुसलसल अपॉर्चुनिटी को देखते रहना है और देखना है कि तब्दीली कौन सी लानी है, और उसको लाने के लिए लाजमी बात है कि इसका लिंक स्ट्रेटजी के साथ है, स्ट्रेटजी से बता रही है कि हम किस तरफ जाना चाहते हैं। तो पोर्टफोलियो उसको मद्देनजर रखते हुए बिजनेस केसेस बनाता रहता है, और उन बिजनेस केसेस में ये देखता है कि कौन सी चीज ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेटजी के सबसे ज्यादा अलाइंड है या जो ऑर्गेनाइजेशन को सबसे ज्यादा फायदा देगी। उन बिजनेस केसेस को ऊपर लेके आता है, उन बिजनेस केसेस को ऑर्गेनाइजेशन के सामने अप्रूवल के लिए रखता है। उनमें से अगर से जो चीजें अप्रूव हो भी जाती हैं, उनको फिर प्रायोरिटाइज करता है कि इनमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा, ज्यादा फायदेमंद क्या है। क्योंकि देखिए पोर्टफोलियो का काम है फायदा देखना, फाइनेंशियल फायदा, ज्यादा फायदेमंद क्या है, कम अज कम पैसों में ज्यादा से ज्यादा फायदा कौन सा प्रोजेक्ट या प्रोग्राम दे रहा है, ये प्रायोरिटाइज करता है। उसके बाद इंपॉर्टेंस भी उसको ज्यादा देता है जो प्रायोरिटी में ऊपर है, और फिर रिसोर्सेज जो इनके अंदर डिस्ट्रीब्यूट होने होते हैं उनको भी उसी प्रायोरिटी के हिसाब से देता है। ये हैं सारे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की अलाइनमेंट जो कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी से चाहिए। ये अगर वो बुनियादी काम कर ले तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का काम हो रहा है। अब आप इससे भी ज्यादा ताकतें देना चाहते हैं तो भले दे दें, हमें तो कोई इतराज नहीं है, लेकिन बुनियादी तौर पे पोर्टफोलियो मैनेजर का काम ये है, वो इतना काम कर ले तो ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी उससे सेटिस्फाई हो जाती है। लेकिन हम कभी कभी ऐसा भी करते हैं, हम कहते हैं जी पोर्टफोलियो के सर पे ताज रख दें, उसको सारी स्ट्रेटेजिक ताकतें दे दें, वो सारे डिसीजन खुद ही ले लिया करे। ऐसा किया जा सकता है, ये डेलीगेशन हम पोर्टफोलियो को दे सकते हैं। लेकिन अगर स्ट्रेटजी वाले ये समझते हैं कि नहीं डिसीजन हम खुद ही करेंगे, तो पोर्टफोलियो वाला सिर्फ चीजों को रिकमेंड किया करेगा। लेकिन पोर्टफोलियो का अपना एक स्ट्रेटेजिक रोल जो है वो तो है। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की अपनी एक हैसियत है।
उसके बाद आ जाता है प्रोग्राम मैनेजमेंट। तो आप जानते ही हैं कि प्रोग्राम मैनेजमेंट का क्या काम है। प्रोग्राम, जी जी जिशान, एक मिनट आपको मैं ऑन कर दूं माइक। जी जिशान। सर इसमें पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का आपने कहा था कि वो देख रहे होते हैं इकोनॉमिक वैल्यू, जी बिजनेस केस या कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। जी तो बिल्कुल। जो है प्रोग्राम मैनेजमेंट बेनिफिट्स को देख रहा होता है। तो जी जस्ट टू अंडरस्टैंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ये आल्सो लिंक विद द स्ट्रेटजी। तो अगर स्ट्रेटजी जो है वो उसमें जो इकोनॉमिक वैल्यू है वो एक पिलर हो, इकोनॉमिक वैल्यूज हो, बट स्टिल दे आर इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस, तो हम फिर कहेंगे कि ये ओवरऑल स्ट्रेटजी को देख रहा होता है, या स्टिल वी विल से कि इट्स ओनली लुकिंग एट द इकोनॉमिक वैल्यू थिंग? देखिए, स्ट्रेटजी और इकोनॉमिक वैल्यू क्या दोनों एक दूसरे से अलाइन नहीं होंगे? सर फॉर एग्जांपल जो है वो जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ, यहाँ पर इकोनॉमिक वैल्यू जो स्ट्रेटजी है, जो बिजनेस स्ट्रेटजी है, उसमें 4 जो है वो मेन डिलीवरेबल्स हैं, ओके, और इकोनॉमिक वैल्यू उनमें से एक है। उनमें से एक है बाकी ना। जो है वो 3 और जो है वो स्ट्रेटजिक, 3 जो है वो नॉन इकोनॉमिक जो है स्ट्रेटजिक बिल्कुल सही, जो है वो है, प्रायोरिटीज हैं। बिल्कुल। तो सम प्रोजेक्ट्स जो है वो फॉर एग्जांपल जो है वो ऐसे भी होते हैं जिसमें जो है वो कंपनी का कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होता, लेकिन जो है वो स्टिल वो जो है वो किसी और प्रॉमिस को जो है वो स्ट्रेटेजिक प्रॉमिस को जो है वो मीट कर रही होती है। तो होगा ये कि अगर अगर देखें, पहली तो बात ये है कि हमने कोई प्रायोरिटाइजेशन रखी होगी कि जो हमने 4 ऑब्जेक्टिव रखे हैं जिसमें से एक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है, तो जी, उसकी क्या वेटेज है बाकियों के मुकाबले में, और ठीक है। पोर्टफोलियो जो है वो उसके हिसाब से उनकी प्रायोरिटाइजेशन करेगा। जो वेटेजेस आपने दी हुई हैं, उन वेटेजेस जी को जी। मद्देनजर रखते हुए वो सारे प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम्स को प्रायोरिटाइज करेगा। अगर इकोनॉमी इज मोर इंपॉर्टेंट टू योर ऑर्गेनाइजेशन, द स्ट्रेटजी ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, तो इकोनॉमी वाली चीजें ज्यादा प्रायोरिटाइज ऊपर आ जाएंगी। जो अगर ये बात नहीं है तो इकोनॉमी वाली चीजें शायद नीचे चली जाएं। लेकिन प्रायोरिटी में जो है वो ऑर्डर जो बनेगा वो इस स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव को मद्देनजर रखते हुए बनेगा। ये आपकी सर ऑर्गेनाइजेशन की तो सर स्ट्रेटजी है, और ये स्ट्रेटेजिक वालों ने डिस्कस करना है और डिसाइड करना है कि सर किस चीज को कितनी वेटेज देनी है। सही, तो इन प्रिंसिपल वी कैन से कि जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है इज डायरेक्टली लिंक्ड विद द स्ट्रेटजी, एंड देन ऑफ डिपेंड्स कोर्स। ऑन द स्ट्रेटजी हाउ द स्ट्रेटजी इज फॉर्मुलेटेड, इज 100% इकोनॉमिक, वैसे तो अगर मैं ये 50% कहूँ कि इकोनॉमिक एंड सारी चीजें 50% तो, नॉन इकोनॉमिक। राइट, प्रोग्राम और प्रोजेक्ट भी स्ट्रेटजी से लिंक्ड हैं, लेकिन पोर्टफोलियो जो है वो तो बैक टू बैक लिंक है ना। आप यूं समझिए कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट को कमर से बांधा हुआ है, दोनों को, दोनों की कमरें आपस में बंधी हुई हैं। अब होता क्या है कि अगर स्ट्रेटजी अपना जरा सा भी डायरेक्शन चेंज करे तो पोर्टफोलियो को भी अपना डायरेक्शन चेंज करना पड़ता है, क्योंकि वो तो उससे बंधा हुआ है। तो ओके, पोर्टफोलियो फौरन रीहैश करता है अपने प्रोजेक्ट्स की प्रायोरिटाइजेशन, अपने प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम्स को रीप्रायोरिटाइज करता है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन ने तो रुख बदल लिया है, तो प्रोजेक्ट्स तो पुराने तरीके के साथ प्रायोरिटाइज हुए हुए थे, तो अब जो प्रायोरिटीज चेंज हुई हैं, से कि इकोनॉमिक कंसिडरेशंस हैव गॉन डाउन, देयरफॉर द प्रायोरिटी ऑफ द वर्क शुड चेंज। तो ये रिश्ता है पोर्टफोलियो का ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी के साथ कि ये एक दूसरे से क्लोजेस्ट हैं और एक दूसरे के साथ बैक टू बैक बंधे हुए हैं, जबकि प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम्स कंपैरेटिवली जरा ज्यादा रिजिड हैं। जी निशान, थैंक यू। ओके, जी सर, थैंक यू। ओके। अच्छा जी, फिर आ जाए आप प्रोग्राम मैनेजमेंट के ऊपर। तो आपको तो पता ही है कि प्रोग्राम मैनेजमेंट जो है वो अपने अपने अंदर पाए जाने वाले प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम कंपोनेंट्स को काबू में करता है, उनको उनकी इंटरडिपेंडेंसीज को कंट्रोल करता है, और इसका ऑब्जेक्टिव जो होता है वो कोई बेनिफिट निकालना होता है। और ना सिर्फ ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ना सिर्फ ये कि बेनिफिट निकालना, बल्कि एक तो ये इंश्योर करना कि वो जो डिलीवरेबल है वो बेनिफिट में कन्वर्ट हो, बल्कि उस बेनिफिट को यूनिफाई करना और उसको सस्टेन करना और उसको ट्रांजिशन करके अगले को डिलीवर करना, यहां तक का सारा काम प्रोग्राम का है। तो प्रोग्राम पोर्टफोलियो के मुकाबले में तो छोटी चीज है, लेकिन बजाते खुद प्रोग्राम एक स्ट्रेटजी को हैंडल कर रहा होता है, और वो स्ट्रेटजी उस बड़ी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी का एक हिस्सा होती है। प्रोग्राम को हम डिलीवरेबल बनाने को नहीं देते, उसको हम अपनी बड़ी स्ट्रेटजी का एक पोर्शन हाथ में पकड़ा देते हैं कि भाई ये मसला है,
ये पकड़ लो और इसको खुद ही संभालो, खुद ही समझो और खुद ही डिजाइन करो कि इसको कैसे अचीव करना है. सो देयरफॉर प्रोग्राम्स आल्सो डू हैव देयर ओन स्ट्रेटजी which is a subset of the organizational strategy. And naturally पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जो है वो एक कंडुएट है जिसके थ्रू ये स्ट्रेटजी प्रोग्राम मैनेजर को या प्रोग्राम मैनेजमेंट को ट्रांसफर होती है. इज इट ओके जी? ये कोई बात क्लियर हुई है? जी सर, आई एम ओके. स्ट्रेटेजी और बेनिफिट की जरा अगर इजी लाइफ एग्जांपल कोई सादी सी जैसे कप या मकान वाली एग्जांपल थी, स्ट्रेटेजी और बेनिफिट में फर्क कोई आसान सी एग्जांपल. ओके ओके. देखें जी, बात यह है कि जैसे मैंने वो एजुकेशन सिस्टम की आपको एग्जांपल दी थी हुकूमत के लेवल के ऊपर, हुकूमत ने ये अपना, इसको शुरू से देखना पड़ेगा कि हुकूमत का विजन क्या है. अगर हुकूमत को मैं एक ऑर्गेनाइजेशन समझ रहा हूं इस वक्त, हुकूमत का विजन क्या है? फर्ज करें हुकूमत ये कहती है कि जनाब अगले 50 साल में हम लोग एशिया की लीडिंग कंट्री बन जाएंगे टेक्नोलॉजी में और फलानी चीज में. ये इनका ड्रीम है. विजन क्या होता है? विजन ड्रीम होता है. अब इस ड्रीम को पूरा करने के लिए आप अपने मिशन बनाते हैं. जैसे इन्होंने बात की थी ना कि जी हमारे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी में 4 पॉइंट्स हैं और 1 पॉइंट इकोनॉमिक है और 3 नॉन इकोनॉमिक है. वो एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो वो जो पॉइंट्स हैं वो आपका मिशन डिफाइन करते हैं कि हमने इन 50 सालों में क्या क्या मेजर अकम्पलिशमेंट्स मेक करनी है. मेजर जो आपके वो ब्रॉडली कि जी टेक्नोलॉजी में हम यहां पहुंच जाएंगे, आईटी में हम यहां पहुंच जाएंगे, फलानी चीज. ऑल्दो दिस शुड बी डिफाइनेबल. मतलब ये नहीं हो सकता कि जी टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छे हो जाएंगे. दिस इज नॉट क्लियर कि कितना कच्चा होना है आपने. आप एग्जैक्टली डिफाइन करते हैं कि टेक्नोलॉजी में हम फलाने को बीट कर लेंगे या टेक्नोलॉजी में हम इस लेवल पे पहुंच जाएंगे. तो इस तरह के मिशन आप डिफाइन कर लेते हैं. जब वो मिशन डिफाइन हो जाते हैं तो उसके बाद उन मिशंस को अचीव करने के लिए आप ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे स्ट्रेटजीज डिवाइस करते हैं कि अच्छा अगर मैंने टेक्नोलॉजी वाइज लीड करना है मार्केट में और इस लेवल तक पहुंचना है तो मेरी क्या क्या स्ट्रेटजीज होंगी. तो ये अभी तक स्ट्रेटेजिक लेवल पे बात हो रही है. आप कहते हैं जी हमें जनाब अपनी क्या कहते हैं हायर एजुकेशन को ये इम्प्रूव करना होगा, इस लेवल पे ले जाना होगा, फलानी चीज को ऐसे करना होगा, फलानी चीज को ऐसे करना होगा. से आपकी 50 डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं. अब कुछ तो आप कहते हैं कि जी हमारा एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होना चाहिए. एक चीज उसके अंदर आता है कि हम एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएंगे which is probably a kind of a deliverable. It is a kind of a building. So you can start a project directly for that and आप प्रोजेक्ट मैनेजर को सिर्फ ये डिफाइन करेंगे भाई ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की ये स्पेसिफिकेशन है, ये बना दो. तो इसमें क्या किया आपने? स्ट्रेटजी से प्रोडक्ट डायरेक्टली डिफाइन करके स्ट्रेटजी ही ने डिफाइन करके एक प्रोजेक्ट मैनेजर के हवाले कर दिया. ये प्रोजेक्ट डायरेक्ट शुरू हो गया, इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट. ऑन दी अदर हैंड आपने कहा जी कि हमने जो क्या कहते हैं हायर एजुकेशन बढ़ानी थी तो हमारी यूनिवर्सिटीज का नंबर इस वक्त 500 है और हम चाहते हैं कि ये 2000 तक हो जाए 50 साल में. अब ये जो 500 से 2000 तक लेके जाना है उससे क्या फायदे होंगे वो भी हम लिख के रख लेते हैं कि जी इससे जनाब हमारे इतने पीएचडी बन जाएंगे, इतना ये हो जाएगा, इतना वो हो जाएगा, वगैरह वगैरह वगैरह, और मुल्क के अंदर जनाब ये चेंजेस आएंगी. तो वो सारी सोच उसके साथ होती है. कभी भी कोई स्ट्रेटजी किसी बेनिफिट के बगैर नहीं होती. अब आपने क्या किया कि आपने सिर्फ ये वाली स्ट्रेटजी जो थी आपने कहा जी इसको मैं मजीद नहीं तोड़ रहा, इसको प्रोजेक्ट तक नहीं लेके जाता. प्रोग्राम मैनेजर को बताया कि भाई आप लोग आ जाएं और आप ये स्ट्रेटजी आप संभालें. इस मुल्क में हायर एजुकेशन को इस लेवल तक लेके जाना आपकी जिम्मेदारी है. अब ये प्रोग्राम बन गया और प्रोग्राम मैनेजर ने अब ये इस स्ट्रेटजी को खोलना और तोड़ना है और इससे प्रोजेक्ट्स को इसके अंदर जो जो प्रोजेक्ट बनते हैं उनको जन्म देना है, सब प्रोग्राम्स को जन्म देना है और कोई प्रोग्राम कंपोनेंट्स को जन्म देना है और उनके बेनिफिट्स भी स्पेसिफाई करने हैं. हर एक चीज के बेनिफिट स्पेसिफाई करने हैं, हर एक प्रोजेक्ट के डिलीवरेबल स्पेसिफाई करने हैं और ऊपर से जो गवर्नेंस बॉडी होगी उससे अप्रूव करवाने. और फिर वो इसको साथ लेके चलेगा और उनको एकम्प्लिश करता चला जाएगा. और वही जिस तरह हमने पहले बात की, बेनिफिट्स को जमा करता जाएगा, उनको कंसोलिडेट करेगा और अल्टीमेट 10 साल, 15 साल, 20 साल, 50 साल जितने का भी प्रोग्राम है उसके अंदर वो चीज डिलीवर करेगा.
अच्छा, एक चीज और भी यहाँ बताता चलूं कि स्ट्रेटजी जो होती है, ये अभी 50 साल का प्रोग्राम तो बहुत कम होता है। होता क्या है कि इस स्ट्रेटजी को बनाने से पहले हम ऑर्गेनाइजेशनल लेवल के ऊपर शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म गोल स्पेसिफाई कर लेते हैं। असल में ये हम शॉर्ट टर्म या मिड टर्म के ऊपर प्रोग्राम डिवाइस कर रहे होते हैं, और इस हवाले से अगर मैं 5 साल मंसूबा के ऊपर काम कर रहा हूं तो 5 साल मंसूबे में मेरे प्रोग्राम का साइज जो है वो अमूमन 5 साल तक ही होगा ना। कोई कोई प्रोग्राम ऐसा होगा जो एक्सटेंड करेगा, पहले एक 5 साल मंसूबे से दूसरे में जाएगा तो वो लॉन्ग टर्म में आ जाएगा। तो ये मिड टर्म के ऊपर हम नॉर्मली कैलकुलेट करते हैं। लॉन्ग टर्म आपका है 50 साल, मिड टर्म आपका है 5 साल, और मे बी मैं गवर्नमेंट के हवाले से सोच रहा हूं, और जो शॉर्ट टर्म है वो आपका सालाना प्लान है। सालाना प्लान जो आपका प्लानिंग कमीशन बनाता है, दैट इज योर सालाना प्लान। अब जो भी ऑब्जेक्टिव आपने मिड टर्म का रखा है, आपके सालाना प्लान जो हैं वो उसकी मुताबिकत में होंगे, और जो ऑब्जेक्टिव आपने लॉन्ग टर्म का रखा है 50 साल वाला, आपके तमाम 5 साल प्लान जो है वो उसकी अचीवमेंट के लिए हों। तो इस हवाले से प्रोग्राम मैनेजर को हमने ये कहा कि जी आपने हायर एजुकेशन के लिए फलाने सूबे के अंदर इसको इस लेवल तक लेके जाना है। उसके लिए फिर उसने उसके बेनिफिट रियलाइजेशन प्लान बनाना है, बेनिफिट्स आइडेंटिफाई करने हैं, प्रोडक्ट्स आइडेंटिफाई करने हैं, और प्रोजेक्ट्स उसको जन्म देना है उसके मुताबिक। जी, कुछ बात क्लियर हुई? जी सर, जी सर। जैसे सर एक चीज कंफर्म करनी है, पोर्टफोलियो जो है इसका मतलब ग्रुप स्ट्रेटजीज को देख रहा है और कौन? प्रोग्राम आमतौर पे एक स्ट्रेटजी को देखता है, प्रोग्राम ऐसा ही है सर? एक स्ट्रेटजी या पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी को देख रहा है। ठीक है, ठीक है ना, ठीक मगर सर, मगर प्रोग्राम जो जिस चीज को भी देख रहा है उसको हम कहते हैं प्रोग्राम स्ट्रेटजी। ठीक। फिर वो प्रोग्राम स्ट्रेटजी को ब्रेक डाउन करता है आगे और मजीद उसको खोल के बनाता है। लेकिन जहां तक प्रोजेक्ट का ताल्लुक है, तो प्रोजेक्ट जो है वो सिर्फ एक प्रोडक्ट को देख रहा है। ये जहां पे जैसे आप ये देख लीजिए, अगली स्लाइड अगर आपके सामने आ गई हो, प्रोजेक्ट वाली, अभी नहीं आई आपके सामने, ये वाली। Project management develops and implement plans to achieve a specific scope that is driven by the objective of the program or portfolio जिसके अंडर वो आ रहा है, is subjected to and ultimately to the organizational strategy। ये ऊपर का लिंक है। तो प्रोजेक्ट जो है वो एक स्पेसिफिक स्कोप को, एक खास प्रोडक्ट को बनाने के लिए काम करता है, भले वो किसी प्रोग्राम के अंडर हो या किसी पोर्टफोलियो के अंडर हो। अगर पोर्टफोलियो के अंदर होगा तो इसका मतलब है इंडिपेंडेंट है, अगर प्रोग्राम के अंडर है तो प्रोग्राम की स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहा है। लेकिन एक यहां मैं और भी बात करता चलूं कि जो कोई भी आपको प्रोडक्ट बनाने को दिया गया है, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए प्रोजेक्ट अपनी स्ट्रेटजी डिवाइस करेगा, उसको हम प्रोजेक्ट स्ट्रेटजी भी कहते हैं। मैंने कब बनाना है ना, तो मैं कब बनाने का तरीकाकार जो वजह करूंगा वो मेरी प्रोजेक्ट स्ट्रेटजी कहलाएगी, और उसके मुताबिक मैं बाकी चीजें डिवाइस करूंगा। ओके जी, ये चीज हो गई। अब अगर ये चीज क्लियर है तो हम ओपीएम की बात कर सकते हैं। ओपीएम जो है ऑर्गेनाइजेशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, विच एनकम्पसेस ऑल ऑफ दीज थिंग्स, पोर्टफोलियो, प्रोग्राम, प्रोजेक्ट एंड ऑर्गेनाइजेशनल एनेबलर। ये एडवांस करता है आपकी ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी को। मतलब वो जो जिसे कह रहे हैं ना कि हमें एक जंप चाहिए, वो चेंज जो आपको हम कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल चेंज लानी है और मुसलसल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हमने गेन करना है, सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो ये इस काम के लिए आपको ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी देता है। कैसे? बाय लिंकिंग प्रोजेक्ट्स, प्रोग्राम्स, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रिंसिपल। ये तीनों स्टैंडर्ड जो दिए गए हैं आपको, इनकी कंप्लीट एक्सेप्टेंस एंड अडॉप्टेबिलिटी होगी, एंड अलोंग विद द प्रैक्टिसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एनेबलर्स। और ऑर्गेनाइजेशनल एनेबलर्स कौन से हैं? ये 4 किस्म के हैं जी। इनको एक तो है स्ट्रक्चरल टाइप के हैं, कल्चरल टाइप के हैं, टेक्नोलॉजिकल हैं, और ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिसेस हैं। ये 4 किस्म की प्रैक्टिसेस हैं जिसको हम ऑर्गेनाइजेशनल एनेबलर्स कहते हैं, और ये होती ऑर्गेनाइजेशनल है। मतलब ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिसेस ऑर्गेनाइजेशन से आएंगी, टेक्नोलॉजी जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन डील कर रही है वो प्रैक्टिसेस ऑर्गेनाइजेशन से आएंगी, कल्चर ऑर्गेनाइजेशन से आएगा, स्ट्रक्चर, किस तरह के स्ट्रक्चर में आप काम करते हैं ये भी ऑर्गेनाइजेशन से आएगा।
मगर ये जो कोई भी स्ट्रक्चर, ये प्रैक्टिसेस एग्जिस्ट करती हैं, ये एड ऑन करेंगी आपकी इस चेंज मैनेजमेंट की साइंस के साथ, ये प्रोजेक्ट, प्रोग्राम और पोर्टफोलियो के लिंकेजेस के साथ, और एक ऐसा जिसे कहते हैं हसीन इम्तजाज बनाएगी जो कि सूटेबल होगी आपको, कन्वीनियंट होगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन में तब्दीली लाने के लिए। राइट जी। अब रिलेशनशिप की बात थोड़ा सा और तफसील से देख लेते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन जो है प्रोग्राम मैनेजमेंट के हवाले से, वो उसको जरूरत है अपनी कैपेबिलिटीज को मेजर करने की, अपने प्लान्स को और उनको क्या कहते हैं इंप्लीमेंट करने की, इंप्रूवमेंट्स को, ताकि सिस्टमैटिक अचीवमेंट हो सके बेस्ट प्रैक्टिसेस। अब ये बेस्ट प्रैक्टिस की बात इसने यहां पे क्यों की? अभी तक हम जो बातें करते आए हैं वो तो गुड प्रैक्टिस की बात थी, क्योंकि हमने कहा जी कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक स्टैंडर्ड है, प्रोग्राम मैनेजमेंट का एक स्टैंडर्ड है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का एक स्टैंडर्ड है। ये सारे स्टैंडर्ड जो हैं ये हमें क्या देते हैं? All of these standards are giving us respective good practices. लेकिन एक बात हमने और की कि जब हम इन सब चीजों को मिला देते हैं ऑर्गेनाइजेशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, तो एक ऐसा हसीन इम्तजाज बनता है जो हमें कामयाबी की राह पे गामजन कर देता है, सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देता है। सिर्फ कॉम्पिटिटिव नहीं, एडवांटेज नहीं है, ये एक दफा कामयाबी नहीं, हमने नहीं लेनी, एक 5 साल प्लान में आगे आ जाए और फिर दोबारा डूबना शुरू हो जाए। हम ऐसी स्ट्रेटजी इख्तियार करना चाहते हैं कि हम मुसलसल आगे ही बढ़ते चले जाएं, सबसे आगे निकल जाएं। जब मुकाबला शुरू हो जाता है तो गुड प्रैक्टिसेस काफी नहीं रहती। देन वी हैव टू अचीव द बेस्ट प्रैक्टिसेस, वी हैव टू डिफाइन द बेस्ट प्रैक्टिसेस। मैं जब अपने मुल्क को बाकी मुल्कों के साथ कंपेयर करूंगा तो मैं देखूंगा कि जो कामयाब ममालिक हैं वो क्यों ज्यादा कामयाब हैं हमसे, हम कहां लैग करते हैं, उनकी क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, और अगर मैं उन बेस्ट प्रैक्टिसेस को अचीव करना चाहूं तो मुझे क्या कुछ करना पड़ेगा। इसके, और अगर जो कुछ करना पड़ेगा वो सही हो रहा है कि नहीं हो रहा, इसको चेक करने के लिए मुझे कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स चाहिए होंगे। अगर वो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स एग्जिस्ट करते हो, एक मेजरमेंट का मैकेनिज्म अवेलेबल हो, तो मेरी कैपेबिलिटी मुसलसल बढ़ती रहेगी, मैं उसे मेजर करता रहूंगा और अल्टीमेटली मुझे वो एज मिल जाएगा जो मैं चाहता था, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का, सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का बेनिफिट मुझे अल्टीमेटली मिल जाएगा। तो ये मैं प्रोग्राम के हवाले से भी सिर्फ बात कर रहा हूं, लेकिन ओवरऑल ओपीएम के गैम्बिट में रह के जब काम करेंगे तो बेस्ट प्रैक्टिसेस विल कम इन प्ले। जी जनाब, यहां तक ठीक है जी। ये चार्ट आपने देखा होगा, अभी आपके सामने आ जाता है। ऑर्गेनाइजेशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का चार्ट है जो कि आपने पीएमबीओके में भी देखा, प्रोग्राम मैनेजमेंट के स्टैंडर्ड में भी है, पोर्टफोलियो के स्टैंडर्ड में भी है। और अगर आप इसको जरा गौर से देखें और पढ़ें, और आपने पढ़ा होगा, तो आपको ये समझ आएगा कि चीजें जो हैं बहुत ही वाज़ेह तौर पे क्लियर हो जाती हैं इसको पढ़ने के बाद, कि अगर स्कोप है तो प्रोजेक्ट का क्या स्कोप कैसे बनता है, प्रोग्राम का स्कोप कैसे होता है, और पोर्टफोलियो का क्या होता है। चेंज प्रोजेक्ट लेवल पे क्या होती है, प्रोग्राम लेवल पे क्या होती है, पोर्टफोलियो लेवल पे क्या होती है। तो ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ? जी जनाब। ज्यादा गौर से नहीं पढ़ा सर। इसको गौर से पढ़ें। अभी मुझे एक दिन कमेंट मिला था कि हम जो इधर पढ़ने के दौरान बहुत सी रीडिंग करते हैं वो ना की जाए, और आप लोग अगर पहले से इन स्लाइड्स को पढ़ के आए तो बहुत ज्यादा फायदा होगा। हम डिस्कस करेंगे, हम खास जो आपके क्वेश्चंस हैं, जो आपके प्रॉब्लम्स हैं, उनको एड्रेस कर पाएंगे। तो वैसे ये जो कुछ भी इस स्लाइड के अंदर लिखा हुआ है, दिस इज एक्सट्रीमली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू शुड नो। मैं एक आध को डिस्कस कर लेता हूं। मिसाल के तौर पे आप स्कोप को देखें, आपको बिल्कुल वाजे हो जाएगा प्रोजेक्ट, प्रोग्राम और पोर्टफोलियो के स्कोप में क्या फर्क है। प्रोजेक्ट का स्कोप जो है वो एक डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर बेस करता है, और शुरू में जब हम एक ऑब्जेक्टिव डिफाइन कर लेते हैं शुरू में, बाद में वो तब्दील भी होते हैं, स्कोप बदलता भी तो है ना, तो प्रोग्रेसिवली एलेबोरेट होता रहता है
थ्रू आउट द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। तो हमने अपना एक बाउंड्री डिफाइन की और उसके मुताबिक काम शुरू कर देते हैं, लेकिन अनसर्टेनिटी की वजह से वो बाउंड्री कुछ कुछ बदलती भी रहती है और मैं उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करता रहता हूं थ्रू आउट दी प्रोजेक्ट। मगर फोकस मेरा यहाँ का क्या है, उस डिफाइंड ऑब्जेक्टिव को अचीव करना, मतलब वो डिलीवरेबल बनाना। जबकि प्रोग्राम का जो स्कोप है जरा बड़ा है, वो मायोपिक व्यू नहीं रखता, वो एक डिलीवरेबल को बनाने की बात नहीं करता, वो उस डिलीवरेबल से बेनिफिट जो निकलना है उसको ही टारगेट करता है, बल्कि उसको घर तक पहुंचाता है और एक से ज्यादा बेनिफिट्स को हिट करता है। इसका मतलब है कि वो एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स के ऊपर बात कर रहा है, कंसोलिडेशन ऑफ बेनिफिट की बात है, सस्टेनमेंट की बात है, ट्रांजिशन की बात है। तो प्रोग्राम जो है उसका स्कोप जरा प्रोजेक्ट के मुकाबले में काफी वाइडर है। पोर्टफोलियो ऑर्गेनाइजेशनल स्कोप को देखता है। एक प्रोजेक्ट या प्रोग्राम एक महदूद स्कोप को देख रहे हैं, जबकि पोर्टफोलियो जो है वो बिल्कुल स्ट्रेटेजिक नजर रखता है और दैट चेंजेस विद द स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मैंने कहा था कि पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी के साथ कमर से बंधा हुआ है। जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी अपना रुख बदलती जाती है, वैसे वैसे पोर्टफोलियो अपनी प्रायोरिटी बदलता जाता है। तो पोर्टफोलियो इस तरह से, इसका स्कोप जो है वो ऑर्गेनाइजेशन पे मुकम्मल तौर पे डिपेंडेंट है। इसी तरह ये आप बाकी तमाम चीजें भी पढ़ेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि प्रोजेक्ट, प्रोग्राम और पोर्टफोलियो में क्या फर्क है। डू यू वांट मी टू explain each one of that or should we move ahead? सर अगर इम्पोर्टेंट है तो कर दीजिए प्लीज। इम्पोर्टेंट तो है, मगर ये कि ये जैसे मैंने ये अभी पढ़ा आपके सामने, तो दिस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। चेंज में अगर आप देखें, वो कहता है जी प्रोजेक्ट मैनेजर्स एक्सपेक्ट चेंज एंड इम्प्लीमेंट प्रोसेसेस टू कीप चेंज मैनेज एंड कंट्रोल। अनसर्टेनिटी है ना प्रोजेक्ट के अंदर, तो प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो हमेशा एक्सपेक्ट करता है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर होगा जो मैंने ना सोचा हो, तो वो चेंज को एक्सपेक्ट करता है और ऐसे इंतजामात करता है, ऐसी प्रोसेसेस को इंप्लीमेंट करता है ताकि जब भी तब्दीली कोई आनी हो आए तो उसको प्रॉपरली मैनेज और कंट्रोल किया जा सके। मतलब वो प्रोएक्टिव रहता है, तैयार रहता है। प्रोग्राम मैनेजमेंट के हवाले से वो चेंज को एक्सेप्ट करता है दोनों तरफ से, ऊपर से भी और नीचे से भी। प्रोग्राम ऊपर पोर्टफोलियो और स्ट्रेटजी बैठी हुई है और नीचे इसके प्रोजेक्ट बैठे हैं। आप देखेंगे कि प्रोग्राम मैनेजर को दोनों तरफ से बम्बार्डमेंट आती है। ऊपर से भी चेंज के काम आ रहे होते हैं, नहीं ये कर दो, क्योंकि ऊपर से पोर्टफोलियो चेंज हो रहा है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी चेंज हो रही है, उसकी वजह से प्रोग्राम के बेनिफिट भी चेंज होंगे। इसका मतलब है कि प्रोजेक्ट्स को भी चेंज करना पड़ेगा। तो एक तो ये ऊपर से आने वाला दबाव है, एक नीचे से ऊपर दबाव आ रहा है कि प्रोजेक्ट जब किए जाते हैं तो वो रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर रहे, या प्रोजेक्ट के अंदर चेंजेस आ रही हैं जिसकी वजह से प्रोग्राम को बदलने की जरूरत पड़ती है। फिर प्रोग्राम को ऊपर इन्फॉर्म करना पड़ता है कि जनाब इन मुश्किलात की वजह से अब काम ऐसे नहीं बल्कि ऐसे होगा। तो ऊपर से स्ट्रेटजी तक जाता है। तो ये नीचे और ऊपर का पूरा सिलसिला जो चेंज का है, प्रोग्राम मैनेजर को संभालना पड़ता है। जहां तक पोर्टफोलियो मैनेजर का ताल्लुक है, तो वो कॉन्टिन्यूसली चेंज को मॉनिटर करता रहता है ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में, इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट्स में, और देखता है, स्ट्रेटजी को देखता रहता है कि यार कोई ऐसा अंदरूनी या बैरूनी खतरा तो नहीं है जो हमारी सोच को बदल दे, हमारे डायरेक्शन को बदल दे, और मुझे अगर कोई ऐसी चीज है तो मैं फौरी उसके साथ अलाइन हो सकूं। तो आपने देखा कि चेंज तीनों लेवल के ऊपर कुछ डिफरेंट पर्सपेक्टिव रखती है, जैसे स्कोप तीनों लेवल के ऊपर डिफरेंट पर्सपेक्टिव रखता है। इसी तरह प्लानिंग है। प्लानिंग में प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो प्रोग्रेसिवली एलेबोरेट करता है, पहले बड़े लेवल की इंफॉर्मेशन बनाता है और फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है वो प्रोग्रेसिवली एलेबोरेट करके लोअर लेवल की डिटेल्स लेके आता है। प्रोग्राम मैनेजर जो है वो ओवरऑल प्रोग्राम का प्लान तो बना लेता है और हाई लेवल प्लान प्रोजेक्ट लेवल तक तो बना देता है, लेकिन प्रोजेक्ट के अंदर की प्लानिंग करना कंपोनेंट्स का अपना काम। तो जैसे प्रोजेक्ट मैनेजर ने ओवरऑल प्लानिंग प्रोजेक्ट की और उसके अंदर चीजों को साथ साथ बढ़ाता गया, यहाँ पे प्रोग्राम मैनेजर ने पूरे प्रोग्राम की ओवरऑल ब्रॉड प्लानिंग कर ली और बाकी कंपोनेंट्स पे छोड़ दिया कि अंदरूनी प्लानिंग वो करते रहे
और अंदरूनी प्लानिंग में फिर वही प्रोग्रेसिव इलैबोरेशन अप्लाई होगी और वो भी मुसलसल तब्दील होता रहेगा। पोर्टफोलियो मैनेजर creates and maintain necessary processes and communication relative to aggregate portfolio. पोर्टफोलियो ने एक बैलेंस रखना है सारे पोर्टफोलियो के अंदर, मतलब अच्छे और बुरे प्रोजेक्ट का एक इम्तजाज रखना है, एक ऐसा बैलेंस क्रिएट करना है। तो उसने थ्रू कम्युनिकेशन ये सारा मैकेनिज्म संभाल के रखना है, प्लान करके रखना है कि किसको क्या इंपॉर्टेंस दी जाए। वही बात, प्रायोरिटाइज करना है, किसको रिसोर्सेज देने हैं, किसको नहीं देने हैं, कहाँ फंडिंग रिलीज करनी है, इस चीज को वो प्लान करता रहता है। मैनेजमेंट के हवाले से प्रोजेक्ट मैनेजर्स मैनेज द प्रोजेक्ट टीम टू मीट द प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव। तो मैनेजमेंट में प्रोजेक्ट टीम ही है उसके नीचे, प्रोजेक्ट मैनेजर के नीचे, और वो उसी की मदद से प्लान करता है और उसी के साथ मिलके वो अपने प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करता है। प्रोग्राम मैनेजर प्रोग्राम स्टाफ को और प्रोजेक्ट मैनेजर्स को मैनेज करता है और उनको विजन देता है, उन्हें गाइडलाइन देता है और उनको ओवरऑल लीडरशिप देता है, जिससे वो अहल होते हैं अपने अपने प्रोजेक्ट में कामयाबी हासिल करने में और अल्टीमेटली प्रोग्राम बेटर मैनेजमेंट होती है। पोर्टफोलियो मैनेजर जो है वो मैनेज और कोऑर्डिनेट करता है ओवरऑल पोर्टफोलियो के स्टाफ को। इसका अपना पोर्टफोलियो के लिए कुछ स्टाफ होता है, ये उसको मैनेज करता है जो वो सारी बिजनेस केसेस बना रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, और इसके अलावा प्रोग्राम और प्रोजेक्ट स्टाफ को इस हद तक मैनेज करता है कि इनकी रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज या फॉर दैट मैटर इनकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, उसकी हद तक पोर्टफोलियो उनको मैनेज करता है। लेकिन इसको इससे ज्यादा ताकत दी जा सकती है। स्ट्रेटजी वाला ये कह सकता है कि पोर्टफोलियो सारे प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम का ओवरऑल इंचार्ज है, तो पोर्टफोलियो फिर पूरा जिम्मेदार हो जाएगा। लेकिन आम हालात में पोर्टफोलियो सिर्फ रिसोर्स बैलेंसिंग का काम करता है। सक्सेस इज मेजर्ड बाय प्रोडक्ट एंड प्रोजेक्ट क्वालिटी, टाइमलाइंस, बजट कंप्लायंस एंड डिग्री ऑफ कस्टमर सेटिस्फेक्शन। दिस इज फॉर दी प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट्स में कामयाबी जो है वो डिलीवरेबल के ऊपर है, प्रोजेक्ट की क्वालिटी के ऊपर है, वगैरह वगैरह, स्कोप, टाइम, कॉस्ट वाली और कस्टमर सेटिस्फेक्शन। जबकि प्रोग्राम में सक्सेस जो है वो मेजर्ड बाय डिग्री टू विच द प्रोग्राम सेटिस्फाई द नीड्स एंड बेनिफिट फॉर विच इट वाज अंडरटेकन। जिन मकासद के लिए प्रोग्राम को शुरू किया गया था उसको किस हद तक पूरा किया, ये उसकी कामयाबी है। पोर्टफोलियो की कामयाबी क्या है? इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ द एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस एंड बेनिफिट रियलाइजेशन ऑफ द पोर्टफोलियो। दो बातें, एक कि पैसे का जो इस्तेमाल है, जो इन्वेस्टमेंट है, वो किस तरह से की, बेस्ट परफॉर्मेंस, मतलब बेस्ट परफॉर्मेंस तभी होगी कि कम अज कम पैसे खर्च करके ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उठा रहा हो। तो बेनिफिट रियलाइजेशन भी देखी जाएगी और उसकी इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस भी देखी जाएगी, कितना इन्वेस्ट किया, और इन दोनों के बैलेंस से पता चलेगा कि पोर्टफोलियो कितना कामयाब रहा। मॉनिटरिंग के हवाले से प्रोजेक्ट मैनेजर मॉनिटर और कंट्रोल करता है प्रोडक्ट के, सर्विस के या रिजल्ट के बनने को, जबकि प्रोग्राम मैनेजर मॉनिटर और कंट्रोल करेगा प्रोग्राम के कंपोनेंट्स को, और वो इंश्योर करेंगे कि ओवरऑल गोल, स्केड्यूल, बजट वगैरह जो है वो अचीव हो, और मकसद क्या है कि बेनिफिट मिले हमें, वो हम डिलीवर करने के काबिल हो सके। जबकि प्रोजेक्ट मैनेजर का ये मकसद नहीं था, उसका मकसद सिर्फ डिलीवरेबल तक था, इसका मकसद बेनिफिट तक जा रहा है। और पोर्टफोलियो जो है वो मॉनिटर करता है स्ट्रेटेजिक चेंजेस को और एग्रीगेट करता है रिसोर्स एलोकेशन को, रिसोर्स बैलेंसिंग करता है, किसको क्या देना है परफॉर्मेंस के हवाले से, और ओवरऑल प्रोजेक्ट के रिस्क को देखता है। इन चीजों को पोर्टफोलियो के लेवल पे मॉनिटर किया जाता है। अब ये जितनी बातें आपको बताई गई हैं प्रोजेक्ट, प्रोग्राम और पोर्टफोलियो के फर्क के लिए, तो आपको ये देख के, पढ़ के मेरा ख्याल है काफी फेयरली गुड आइडिया हो जाना चाहिए कि ये तीनों चीजें अलग अलग कैसे एक दूसरे से कंपीट करती हैं। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक अलग शोबा है, प्रोग्राम मैनेजमेंट एक अलग शोबा है, और पोर्टफोलियो एक डिफरेंट चीज है। इन तीनों को मिलाएं तो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बनती है विद द एडिशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एनेबलर्स। यहां तक क्लियर हो गई बात कि नहीं? जी सर, काफी अच्छा एक्सप्लेन हो गया सर। राइट। अब जनाब एक एक चीज को उठा रहे हैं, थोड़ी सी डिटेल ज्यादा है इस चैप्टर में, लेकिन ये जरूरी भी है कि आपको ये सारी चीजें जो हैं ये एक दफा वाजे हो जाएं
अब वो कहता है प्रोजेक्ट प्रोग्राम मैनेजमेंट और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के दरमियान थोड़ी सी बहस करते हैं। प्रोजेक्ट प्रोग्राम और प्रोजेक्ट में ड्यूरिंग प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट इनिशिएशन प्रोग्राम मैनेजर का क्या काम है। प्रोग्राम मैनेजर, अब ये किस की बात हो रही है कि प्रोग्राम और प्रोजेक्ट की, प्रोग्राम के अंदर प्रोजेक्ट चल रहा है, तो ओवरसीज एंड प्रोवाइड्स द डायरेक्शन एंड गाइडेंस टू द प्रोजेक्ट मैनेजर। ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमारे यहाँ आदत है लोगों को कि चीजों को माइक्रो मैनेज करें। जो बंदा आज प्रोजेक्ट प्रोग्राम मैनेजर है वो कल प्रोजेक्ट मैनेजर रह चुका है, उसका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में काफी एक्सपीरियंस है, उसका दिल नहीं करता कि प्रोजेक्ट के अंदरूनी मामलात से बाहर निकले, वो अपने आप को स्पेशलिस्ट समझता है। तो ये बात माइक्रो मैनेजमेंट वाली है। जो प्रोजेक्ट मैनेजर वहां पे काम कर रहा है उसको अपना काम करने दें, उसको सिर्फ गाइडेंस और डायरेक्शन दें, उसको उसके हाथ को ना पकड़ें, उसके काम को करने की कोशिश ना करें। आप एज अ प्रोग्राम मैनेजर, आपकी अपनी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है स्टेक होल्डर्स के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ और ओवरऑल बेनिफिट मैनेजमेंट के लिए। तो आप जो जो प्रोडक्ट की डिलीवरी है, प्रोडक्ट की डेवलपमेंट है, उसके अंदर पंगाबाजी करने की कोशिश ना करें। हाँ, अपना तजर्बा जो है वो अपने प्रोजेक्ट मैनेजर्स के साथ शेयर जरूर करें, उनको रास्ता जरूर दिखाएं, लेकिन उनका काम करने की कतन कोई जरूरत नहीं। दूसरा, कोऑर्डिनेट एफर्ट्स बिटवीन प्रोजेक्ट। जो इंटर प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन या कोऑर्डिनेशन है उसका काम प्रोग्राम मैनेजर या उसका स्टाफ वो ऐसे तरीके से हैंडल कर सकता है, क्योंकि ये वो मसला है जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स खुद नहीं रिजॉल्व कर सकते। ये कंफ्लिक्ट सिचुएशन आती है एक प्रोजेक्ट दूसरे प्रोजेक्ट के साथ, दोनों प्रोजेक्ट मैनेजर इक्वल स्टेटस के हैं, दोनों की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स और डिमांड्स हैं, उनमें झगड़े होंगे। आपने उनको कोऑर्डिनेट करवाना है ताकि वो झगड़े वाली सिचुएशन ही पैदा ना हो, एक सीमलेस फ्लो हो। क्या चीज इस प्रोजेक्ट से निकल के इस प्रोजेक्ट को कब मिलेगी, वो इसके साथ क्या करेगा, तो एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल क्लियर हो। उसके बाद ये बात जो मैंने पहले भी कही कि प्रोग्राम मैनेजर डज नॉट डायरेक्टली मैनेज द इंडिविजुअल कंपोनेंट। किसी भी प्रोजेक्ट को या किसी छोटे कंपोनेंट को खुद से मैनेज करने की कोशिश भी नहीं करेगा प्रोग्राम मैनेजर, क्योंकि उसके अपने बहुत से काम है और वो माइक्रो मैनेजमेंट करना भी नहीं चाहता। तो प्रोग्राम मैनेजमेंट की जो असेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं इस हवाले से, पहली बात ये कि वो प्रोग्राम को प्लान करे, प्रोजेक्ट को नहीं, प्रोग्राम को प्लान करे ओवरऑल। फिर वो आइडेंटिफाई और प्लान करे कि क्या क्या बेनिफिट्स कैसे कैसे रियलाइज होने, कब कब रियलाइज होने, और इन बेनिफिट्स को कैसे सस्टेन किया जाएगा। सस्टेनमेंट को आप यूं समझिए कि हार्मोनाइज करना। एक तो ना बेनिफिट निकल आया, प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट से आपको बेनिफिट निकलना शुरू हो गया, आपने तालियां बजानी शुरू कर दें, जी ओ बेनिफिट निकला है, चलो छुट्टी करें। मैं आपको ये एक बड़ी मजे की बात बताऊं, एक किस्सा है इसी तरह का। एक जमाना था जी कि हमें राइडिंग वगैरह नहीं आती थी, पहली दफा हम देखते थे लोग अक्सर राइडिंग के लिए जाते हैं। तो एक दफा हमें भी शौक चढ़ा कि हम भी राइडिंग करेंगे। तो हम चले गए और वहां पे लोग बैठे इंतजार कर रहे थे, घोड़े थे, घोड़ों पे लोग बारी बारी जाते थे, चक्कर लगाते थे, वापस आ जाते थे। तो एक अच्छा एक्सपर्ट राइडर मेरे पास बैठा हुआ था। मैंने कहा कि यार मैं इससे पूछ लूं कि यार राइडिंग करते कैसे हैं, किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। तो उसने मुझे बताया कि जनाब घोड़े पे इस तरह से चढ़ना है, रकाब में पांव रखना है, ऊपर चढ़ना है, मजबूती से टांगों को उसके गिर्द लपेट के रखना है ताकि वो अगर आपको फेंकना भी चाहे तो ना फेंक सके। और दूसरी बात उसने एक बड़ी जरूरी मुझे ये बताई कि घोड़े की लगामों को पकड़ के रखें, और घोड़ा अगर अपना सर नीचे की तरफ ले जाने की कोशिश करे तो आपने उसे नीचे नहीं ले जाने देना, क्योंकि जो ही वो सर नीचे ले जाएगा उसे अपनी आजादी का एहसास होगा और वो शायद आपको पटक दे, तो उसका सर ऊपर रख ले। मैंने ये चीजें पल्ले से बांध ली और राइडिंग का टाइम हुआ, बारी आई, हम घोड़े पे चढ़ गए और बड़े मजे के साथ जनाब दी हुई इंस्ट्रक्शंस के एन मुताबिक हमने वो राइडिंग का पूरा सेशन किया। और हम दिल में बहुत खुश के जनाब क्या कमाल किया, क्या जबरदस्त राइडिंग की है आज हमने, और वाकई कोई उसमें मसला नहीं हुआ। और जब मैं राइडिंग खत्म हुई और घोड़े से हम डिसएम्बार्क होके नीचे उतरे तो बड़ी खुशी के साथ कि जी बेनिफिट रियलाइज हो गया, क्या बात है, कमाल कर दिया मैंने तो आज। तो हम भागते हुए बाहर की तरफ निकल गए और कुछ देर बाद मैंने वापस मुड़ के देखा तो मैंने देखा कि अंदर भगदड़ मची हुई है, सारे घोड़े एक दूसरे पे चढ़े हुए भाग रहे हैं, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, मतलब अजीब मंजर है।
तो मैंने कहा क्या हुआ? उसने कहा जनाब आपने अपने घोड़े की लगाम साइज के हवाले नहीं की थी, घोड़ा बिदक गया। मैंने सस्टेन नहीं किया जनाब, मैंने बेनिफिट तो रियलाइज कर दिया, मैंने उसको सस्टेन नहीं किया, उसको हार्मोनाइज नहीं किया। मुझे चाहिए था कि मैं वो आखिरी स्टेप भी करता ताकि घोड़ा तसल्ली में रहता, उसको पता होता कि अब मेरा मालिक कोई और है, अब मुझे किसी और ने संभाल लिया। जब जो ही उसे अपनी आजादी का एहसास हुआ, वही घोड़ा जो बड़ी तमीज से चल रहा था वो सारे बेनिफिट बिगाड़ बगूड़ के बैठ गया। तो सस्टेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है और इसको भी अपने प्लान के अंदर शामिल करें। एक प्रोडक्ट को बेनिफिट में कन्वर्ट करना, बेनिफिट कब कब कैसे कैसे रियलाइज होंगे और उनको फिर कितनी देर तक सस्टेन करना है, फिर ये एक आदत बन जाए। एक और मैं आपको एग्जांपल दूं, एक प्रोजेक्ट है मिसाल के तौर पे ये जो है डोनर एजेंसी का, कि जनाब कोयटा के एरिया में हमने पानी नहीं है तो पानी पहुंचाना है गांव में, और उनको आई मीन के उनको ये बेनिफिट देना है कि उनको पानी मिलता रहे। अब हुआ क्या कि उन्होंने वहां पे ले जाकर पानी का प्रोजेक्ट किया, पानी पहुंचाया, जो भी कोई कार्रवाई की, और उनको ट्रेनिंग भी दी उन लोगों को कि कैसे पानी को निकालते रहना है या क्या करना है और इस काम को मुसलसल कब रखना है। लेकिन उन्होंने उसे सस्टेन नहीं किया, उन्होंने वो काम किया, बेनिफिट डिलीवर किया और लोगों को ट्रेनिंग देके मतलब ट्रांजिशन करके आ गए वापस, सस्टेन नहीं करके आए। अब हुआ क्या अल्टीमेटली, ये बल्कि द सेम एग्जांपल इज बीइंग रिपीटेड, ये जो पंजाब की स्कीम चल रही है ना पानी वाली, साफ पानी वाली, उसमें एग्जैक्टली यही हो रहा है कि वहां सस्टेन नहीं कर रहे। अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि लोग वहां से टूटियां भी उतार के ले गए, लोगों को कोई परवाह नहीं है। आप उनकी आदतें तो सही करें, पहले पहले उनको आदत तो डालें कि भाई ये तुम्हारे फायदे की चीज है, ये नहीं करोगे तो खुद मर जाओगे। लेकिन वहां कोई आपने सस्टेनमेंट का जब मैकेनिज्म नहीं किया तो अल्टीमेटली वो लोग कभी भी इसको नहीं चलाएंगे। आप उनकी घुट्टी में डाल दें कि भाई अगर तुम ये नहीं करोगे तो मर जाओगे, इसको इस तरीके से करना है और ये मुसलसल करने का ये तरीका है। तो सस्टेन करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब वो आदत में आ जाए तब हम उसको ट्रांजिशन करते हैं। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि खाली बेनिफिट रियलाइज करने के ऊपर खुश होने की और तालियां बजाने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि अल्टीमेटली उसको सस्टेन भी करना पड़ता है और तब ट्रांजिशन किया जाए। आइडेंटिफिकेशन एंड कंट्रोल ऑफ द इंटरडिपेंडेंसीज बिटवीन द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट में कहां कहां कौन सी चीजें एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करनी है, एक प्रोजेक्ट ने कब कौन सी चीज निकाल के दूसरे को देनी है, कोई बंदा, कोई चीज, कोई आउटपुट, कोई डिलीवरेबल, और उसने उसके साथ फिर आगे क्या सलूक करना है। ये अगर इंटरसेक्शन पॉइंट्स क्लियरली डिफाइंड हो तो एक्सपेक्टेशंस सेट रहती हैं। अदरवाइज हम एक दूसरे पे फिंगर पॉइंटिंग करते रहते हैं, भाई उसने मुझे वो चीज दी नहीं, मैं क्या करता, और मैं कह रहा हूं कि जी मैं तो लेके बैठा था, वो बंदा लेने नहीं आया। तो भाई आपने डिसाइड कर लेना था ना कि किसने किसके पास जाना है। मैं अपने घर बैठा रहा कि वो आके लेके जाएगा, और वो अपने घर बैठा रहा कि मुझे आके देगा, और मकसद हल नहीं हुआ। तो इसको कंट्रोल करने की जरूरत है, इन इंटरडिपेंडेंसीज को डिफाइन करने की जरूरत है कि किस तरह ये ट्रांसफर अक्कर करेगी। एड्रेसिंग एस्केलेटेड इश्यूज अमॉन्ग प्रोजेक्ट्स दैट कंप्राइज द प्रोग्राम, एस्केलेशन ऑफ इशू एस्केलेशन का प्रोसेस जो है ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है, और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी, आम ऑपरेशंस में भी ये मैकेनिज्म एग्जिस्ट करता है कि जब भी कोई मसला खड़ा होगा तो उसको रिजॉल्व करने का क्या तरीकाकार है, और अगर वो मसला हल ना हो तो फिर उसको किसके पास भेजा जाए मजीद फैसले के लिए। तो एस्केलेशन इश्यूज की एस्केलेशन का कोई तरीका डिफाइंड होना चाहिए, और प्रोजेक्ट्स के अंदर तो खास तौर पे प्रोग्राम के अंदर जो प्रोजेक्ट्स के इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए बहुत क्लियर कट डिफाइंड होना चाहिए, और इसको चेक भी करते रहना चाहिए। जो प्रोग्राम की टीम है वो ये चेक भी करती रहे कि इश्यूज कैसे जा रहे हैं, उनका प्रॉपर रजिस्टर हो, प्रॉपर मॉनिटरिंग हो, प्रॉपर तरीकाकार हो। फिर ट्रैकिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच प्रोजेक्ट, हर प्रोजेक्ट क्या कर रहा है नॉन प्रोजेक्ट वर्क के ऊपर, प्रोजेक्ट के ऊपर कंसोलिडेटेड प्रोग्राम बेनिफिट देने के लिए। जी एहसन, आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर आपकी आवाज ना दरमियान में तकरीबन 3-4 मिनट के लिए बंद हो गई थी। आई एम नॉट श्योर कि आपने उस दौरान क्या बात की है। अच्छा, नेट के बारे में हम कहाँ थे उस वक्त? जी एहसन, हम कहाँ थे उस टाइम के ऊपर? सर आप वो घोड़े वाली एग्जांपल बता रहे थे, वो घोड़ा जो आखिर में
वो लास्ट पॉइंट है, उसके बाद 3-4 मिनट तक में आवाज नहीं आ रही। ओके ओके। अच्छा, ऐसा है जी कि वो मैंने बात बीच में की कि आइडेंटिफिकेशन एंड कंट्रोल ऑफ द इंटरडिपेंडेंसीज बिटवीन द प्रोजेक्ट, के प्रोजेक्ट के दरमियान में जो रिश्ता है उसको वाजे कर देना चाहिए कि कौन किस वक्त किसको क्या चीज देगा और देने का क्या तरीकेकार होगा। अगर ये क्लियरली आइडेंटिफाइड हो, ऐसा ना हो ना कि मैंने आपको एक चीज देनी है और मैं कहूं कि भाई मैं तो वो चीज पकड़ के अपने घर बैठा रहा, आप लेने नहीं आए, और आप ये कहते रहे कि भाई आपने मेरे घर आके देनी चाहिए थी, आपने मुझे दी नहीं। दिस शुड बी क्लियरली डिफाइंड कि मैंने आपके पास जाके देनी है या आपने मेरे पास आके देनी है या हमने किसी सेंट्रल जगह पे जाके। तो दिस शुड बी वेरी क्लियर, ये प्रोजेक्ट्स आपस में कैसे इंटरडिपेंडेंसीज को मेंटेन करते हैं। उसके बाद एड्रेसिंग द एस्केलेटेड इश्यूज जो प्रोजेक्ट्स के दरमियान रेज होंगे, उनको रिजॉल्व करने का कोई तरीकाकार है? आपका एस्केलेशन का इशू एस्केलेशन का बाकायदा मैकेनिज्म होता है, इशू रजिस्टर होते हैं, उनको मॉनिटर करने की जरूरत होती है। देखना होता है कि अगर एक इशू दो प्रोजेक्ट मैनेजर्स के दरमियान रिजॉल्व नहीं हो रहा तो फिर प्रोग्राम मैनेजर इंटरफियर करता है या उसको एस्केलेट किया जाता है वो इशू, और वो टाइमली उसको रिजॉल्व करता है। जी ऐसा आप कुछ और भी कहना चाह रहे हैं? नहीं सर, वही बात थी पिछली। ओके। और आखिरी पॉइंट जो था वो था ट्रैकिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच प्रोजेक्ट एंड द नॉन प्रोजेक्ट वर्क टू द कंसोलिडेटेड प्रोग्राम बेनिफिट। हम जो पीएमओ वाला काम है ना जी, तो एक इस तरह का पीएमओ वाला काम हम यहाँ पे भी करेंगे, और हो सकता है मैं अपना प्रोग्राम ऑफिस बना लूं इस काम के लिए, जो ट्रैक करता रहे सारे प्रोजेक्ट्स को और सारे कंपोनेंट्स को, ताकि हम ये इंश्योर कर सकें कि डिजायर्ड जो कंसोलिडेटेड प्रोग्राम के बेनिफिट्स हैं वो यील्ड हो पा रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। आप ये देखें, दीज आर द एसेंशियल प्रोग्राम मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और आप देखिए कि ये तकरीबन सारी मोटी मोटी चीजों को कवर कर रहा है, प्लानिंग को कवर कर रहा है, बेनिफिट रियलाइजेशन सस्टेनमेंट को आइडेंटिफाई करने की बात कर रहा है, इंटरडिपेंडेंसीज को आइडेंटिफाई और कंट्रोल करने की बात कर रहा है, ये जनाब इशू एस्केलेशन को एड्रेस कर रहा है, और सबसे बड़ी बात ये कि प्रोग्राम के बेनिफिट्स को कंसोलिडेट करने की बात कर रहा है। तो ये सारे मेजर काम हैं जो आपके प्रोग्राम मैनेजमेंट की जिम्मेदारियों में आते हैं। इसके बाद जनाब इंटीग्रेटिव नेचर है प्रोग्राम मैनेजमेंट की, जो कि इन्वॉल्व करती है कोऑर्डिनेटिंग द प्रोसेसेस फॉर ईच ऑफ द प्रोजेक्ट्स आर प्रोग्राम्स। मतलब प्रोग्राम, जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में इंटीग्रेशन का एक नॉलेज एरिया था जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के सारे नॉलेज एरियाज के कामों को इकट्ठा करता था, जोड़ता था, इंटीग्रेट करता था। इसी तरीके के साथ प्रोग्राम बजाते खुद एक इंटीग्रेटर है अपने प्रोजेक्ट्स के कामों का। तो ये उनके तमाम के कामों को इंटीग्रेट करके और अल्टीमेटली आपको पता ही है कि इसको बेनिफिट्स में कन्वर्ट करता है। कोऑर्डिनेशन जो इसकी है वो अप्लाई करती है थ्रू ऑल प्रोग्राम मैनेजमेंट एक्टिविटीज, और इन्वॉल्व करती है मैनेजिंग द प्रोसेसेस एट अ हायर लेवल देन दोज एसोसिएटेड विद इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स। जैसे मैनेजमेंट इश्यूज की मैंने अभी आपसे बात की, रिस्क्स का भी इसी तरह रजिस्टर बनता है और उसकी भी मैनेजमेंट उसी तरीके के साथ होती है। इन चीजों को रिजॉल्व करने की जरूरत है प्रोग्राम लेवल पे। याद रहे कि जो इशू, जो चीज प्रोजेक्ट लेवल पे रिजॉल्व ना हो सके उसको एस्केलेट होना चाहिए, उसको प्रोग्राम लेवल पे एड्रेस करने की जरूरत है, क्योंकि इनके अंदर एक से ज्यादा प्रोजेक्ट्स एक वक्त में एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो प्रोजेक्ट बाउंड्री को, एक प्रोजेक्ट की बाउंड्री को क्रॉस करती हैं। मिसाल के तौर पे मुझे एक रिसोर्स चाहिए काम करने के लिए जो दूसरे प्रोजेक्ट से आना है, तो मुझे जरूरत पड़ेगी, मैं खाली अपने प्रोजेक्ट में रह के वो काम नहीं कर सकता, मुझे प्रोग्राम मैनेजर की सपोर्ट की जरूरत है, उसकी हेल्प की जरूरत है, ताकि वो मुझे फैसिलिटेट कर दे कि दूसरा प्रोजेक्ट मैनेजर मेरे काम में हर्डल्स क्रिएट ना करे। तो ये वो इंटीग्रेटिव नेचर है जो प्रोग्राम की जिम्मेदारियों में आती है। तो द इंटरेक्शन बिटवीन अ प्रोग्राम एंड इट्स कंपोनेंट्स टेंड टू बी आइटरेटिव एंड साइक्लिक। ये जो प्रोग्राम अपने कंपोनेंट्स, प्रोग्राम अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह के साथ बातचीत करता है या उनके मसाइल हल करता है या उनके साथ जो इंटरेक्टिव रवैया अख्तियार करता है, ये करता रहेगा, मुसलसल है, ये आइटरेटिव इन नेचर है, और बार बार ही हैज टू कम बैक फॉर दीज थिंग्स। तो प्रोग्राम जो है वो मुसलसल इन अपने कंपोनेंट्स के साथ इंटरेक्ट करता रहेगा साइक्लिकली। प्लानिंग फेज में इंफॉर्मेशन जो फ्लो कर रही है वो ज्यादातर ऊपर से नीचे कर रही है। प्रोग्राम कंपोनेंट्स टू द प्रोग्राम ड्यूरिंग द प्लानिंग फेज,
predominantly but not exclusively from the programs components to the program during the planning phase. ये बात ये कि मैंने जो प्रोग्राम लेवल पे प्लानिंग वगैरह की है वो तो की है ब्रॉड आउटलाइन, अब मेरे कंपोनेंट जब मुझे प्लान बनाएंगे, अपना अपना प्लान बना के मुझे देंगे, तो मेरा प्रोग्राम मैनेजमेंट प्लान कंप्लीट होगा। बिल्कुल उसी तरह जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान तभी कंप्लीट होता था जब सारे नॉलेज एरियाज उसको अपना हिस्सा बना के दे देते थे। तो मतलब कंप्लीशन तब होगी। स्टार्ट करने के लिए मुझे अपना आउटलाइन प्लान प्रोग्राम लेवल पे बनाना काफी है, लेकिन कंप्लीट करने के लिए मुझे तमाम चीजों के प्लान मुकम्मल चाहिए। Information regarding status changes affecting cross-cutting dependencies could be flowing from project to the program and then from program to the affected project. So information नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे दोनों डायरेक्शन में फ्लो कर सकती है, और लाजमी बात है कि कुछ अहकामात हैं जो ऊपर से नीचे आने हैं और कुछ इंफॉर्मेशन है जो प्रोजेक्ट लेवल से ऊपर प्रोग्राम को जानी है। प्रोग्राम में शुरू में प्रोग्राम गाइड करता है, डायरेक्ट करता है अपने कंपोनेंट्स को ताकि वो अलाइंड रह सकें उन गोल्स और बेनिफिट्स की तरफ। अब कौन सी प्रोग्राम की अपनी स्ट्रेटजी थी, प्रोग्राम की अपनी स्ट्रेटजी थी। अभी इस वक्त मैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी की बात नहीं कर रहा, प्रोग्राम बजाते खुद ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी से अलाइंड है, लेकिन जो प्रोजेक्ट प्रोग्राम के अंदर एग्जिस्ट करते हैं they are supposed to remain aligned with the program strategy. प्रोग्राम के गोलों और बेनिफिट्स को वो अलाइन करेंगे। तो प्रोग्राम also influences the approach for managing the individual projects within it. प्रोग्राम एक गवर्नेंस स्ट्रक्चर, एक मैकेनिज्म, इंस्ट्रक्शंस वगैरह दे सकता है अपने प्रोजेक्ट्स को कि भाई प्रोजेक्ट ऐसे चलाना। वो इन्फ्लुएंस तो कर सकता है उनकी अप्रोच को, लेकिन माइक्रो मैनेज करने से मैंने आपको अभी मना किया कि हम प्रोजेक्ट्स को चलाना नहीं चाहते, हम उनको खुद से माइक्रो मैनेज करके उनका काम प्रोग्राम मैनेजर नहीं करेगा, लेकिन उनको हिदायत तो दे सकता है। तो वो इतना इन्फ्लुएंस उन्हें कर सकता है, एक कंसिस्टेंट मेथड के साथ काम करने को कह सकता है, एक गवर्नेंस स्ट्रक्चर के तहत काम करने को कह सकता है, वो उनके लिए वो लाजमी करार दे सकता है, लेकिन उन कामों को खुद नहीं करेगा। और ये जो है अकम्प्लिश्ड कैसे किया जाता है, प्रोग्राम मैनेजर्स डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी अलोंग विद प्रोग्राम स्टेक होल्डर एंगेजमेंट एंड प्रोग्राम गवर्नेंस। ये आई गवर्नेंस की बात। जो गवर्नेंस मैंने आपसे कहा गवर्नेंस मैकेनिज्म देता है, तो इसके अंदर कई लोगों की इन्वॉल्वमेंट है। इस डिसीजन को लेने के लिए मुझे प्रोग्राम के स्टेक होल्डर्स को साथ लेके चलना पड़ेगा, गवर्नेंस बोर्ड जो प्रोग्राम का है उसको साथ लेके चलना पड़ेगा, और उनकी ख्वाहिशात को ट्रांसलेट करके हिदायत में बदल के मैंने अपने प्रोजेक्ट तक पहुंचानी है कि वो उनको फॉलो कर सके। Later in the program, individual components report through program governance processes on the project status, risk, changes, cost, issue and other information. मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि जब एक गवर्नेंस स्ट्रक्चर आ जाता है ना, तो अब बाकी जितने भी प्रोजेक्ट या कंपोनेंट्स हमारे नीचे चल रहे हैं वो उस गवर्नेंस स्ट्रक्चर के तहत काम करने के पाबंद हो गए। मैं उनको माइक्रो मैनेज नहीं कर रहा, लेकिन मैंने उनको असूल बता दिया कि इस तरह से तुम्हें देखूंगा, इस तरह से चेक करूंगा, काम इस तरह से करना है, फलानी रिपोर्ट का ये फॉर्मेट होगा, रिस्कों को ऐसे ट्रीट करना है, चेंजेस लाने का ये तरीकाकार होगा। तो मैंने वो तरीकाकार बता दिए, और जिसकी वजह से एक कंसिस्टेंसी आ जाएगी सारे प्रोजेक्ट्स में। मेरे प्रोग्राम के अंदर जितने प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे के सारे कंसिस्टेंटली बिहेव करना शुरू कर देंगे। मिसाल के तौर पे स्केड्यूल डेवलपमेंट है, अ डिटेल्ड रिव्यू ऑफ द ओवरऑल स्केड्यूल एट द कंपोनेंट लेवल इज नीडेड टू वैलिडेट इंफॉर्मेशन एट प्रोग्राम लेवल। स्केड्यूल डेवलपमेंट जो है अगर निचले लेवल पे सही बनेगी तभी ऊपर से ही ट्रांसलेट होगी ना। अगर किसी ने एक प्रोजेक्ट में स्केड्यूल डेवलपमेंट अलग किसी और असूल से की हुई है, दूसरे ने किसी और से की हुई है, तो ओवरऑल स्केड्यूल की शक्ल सही कभी भी इमर्ज नहीं हो सकेगी। तो ये चीज देखने वाली है जी कि प्रोग्राम के अंदर हमें इन चीजों का भी ख्याल रखना। ये वही चीज है जो हमने पहले भी डायग्राम देखा था, जो पोर्टफोलियो से प्रोग्राम तक। तो इधर प्रोग्राम के अंदर अगर आप फोकस करें तो ये इंटरेक्शंस दिखा रहा है प्रोग्राम के अंदरूनी। आई डोंट नो आपको अभी ये नजर आ रही है स्लाइड की, नहीं आ रही है? ये वाली आ रही है सर। अब इसमें आप ये देखिए, ये वही उसको उसने ब्लो अप करके दिखाया है कि ऊपर से तो खैर जो कहानी है सो है,
प्रोग्राम के नीचे सब प्रोग्राम्स भी एग्जिस्ट कर सकते हैं अगर कम्प्लेक्सिटी ज्यादा हो, और हर सब प्रोग्राम के अपने अपने प्रोजेक्ट्स होंगे, लेकिन आमतौर पे प्रोग्राम्स के नीचे डायरेक्टली प्रोजेक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं और वो एक से ज्यादा होते हैं। लाजमी बात है कि ये प्रोजेक्ट लेवल के ऊपर जब स्केड्यूल बनेगा या चीजें बनेंगी वो कंसोलिडेट होंगी प्रोग्राम में जाके और अल्टीमेटली प्रोग्राम फाइनलाइज शक्ल में पहुंचेगा। फिर जनाब प्रोग्राम और पोर्टफोलियो, इनका आपस का रिश्ता। पीएमआई जो डिफाइन करती है पोर्टफोलियो को, वो कहती है कि इसके अंदर प्रोजेक्ट्स भी होते हैं, प्रोग्राम भी होते हैं, सब पोर्टफोलियोज भी होते हैं और कुछ ऑपरेशन भी है। नाउ दिस इज स्लाइटली क्रिटिकल कि ये कौन से ऑपरेशन की बात कर रहा है। मैनेज्ड एज अ ग्रुप टू अचीव स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव, मकासद वही हैं जो पोर्टफोलियो के हैं। इन सारी चीजों को मैनेज इसलिए कर रहा है ताकि पोर्टफोलियो अपने वो जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग वाला ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव कर सके और ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी के साथ चल सके, उसकी अलाइनमेंट में रह सके। प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम्स विद इन अ पोर्टफोलियो मे नॉट बी इंटरडिपेंडेंट और डायरेक्टली रिलेटेड। ये कोई जरूरी नहीं है, प्रोग्राम में तो जरूरी था ना कि जितने प्रोजेक्ट्स प्रोग्राम के अंदर एग्जिस्ट करेंगे उनका आपस में कोई ताल्लुक होना जरूरी है। यहां पर जो पोर्टफोलियो में मुख्तलिफ इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स या प्रोग्राम्स एग्जिस्ट करते हैं उनका ताल्लुक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, मतलब उनके दरमियान कोई रिश्ता होना जरूरी नहीं है। इसका मतलब है कि ये प्रोग्राम की डेफिनेशन से अलहदा है। तो एनीथिंग हैपनिंग इन योर ऑर्गेनाइजेशन, all the projects and programs currently running in your organization could be called as your project portfolio. Or you can even subdivide this portfolio into sub portfolios, जैसे मैंने पहले बताया था कि आईटी वाले सारे प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम्स को आईटी के पोर्टफोलियो में डाल दें, कंस्ट्रक्शन वाले सारे प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम्स को कंस्ट्रक्शन के पोर्टफोलियो में डाल दें। जरा ज्यादा वेल मैनेज हो जाएंगी चीजें। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम चल रहे हैं और आपको ये सेग्रीगेशन करने की जरूरत है तो आप पोर्टफोलियो के सब पोर्टफोलियोज भी बना सकते हैं। लेकिन पोर्टफोलियोज में या सब पोर्टफोलियोज में चीजों का कैटेगराइज ही होना काफी है, रिश्ता होना जरूरी नहीं है। हो भी सकता है रिश्ता, लेकिन रिश्ता होना जरूरी नहीं। दे आर ऑफन अनरिलेटेड, आमतौर पे वो उनके अंदर रिश्ता होता ही नहीं है। तो दे मे शेयर अ कॉमन रिसोर्स पूल और compete फॉर फंडिंग, मतलब एक पूल के अंदर एक एक पोर्टफोलियो या सब पोर्टफोलियो के अंदर जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो उनका वैसे तो कोई रिश्ता नहीं होता, लेकिन शायद वो सब एक ही कस्टमर के लिए किए जा रहे हैं इसलिए ये ग्रुप है। वो एक ही इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं सारे प्रोजेक्ट और प्रोग्राम, इसलिए उनको इस तरह ग्रुप किया गया है। वो एक ही रिसोर्स पूल से रिसोर्सेज लेते हैं इसलिए इनको ग्रुप किया गया है, या उनका फंडिंग एक ही सोर्स से आता है। कोई वजह हो सकती है, कोई कैटेगराइजेशन हो सकती है पोर्टफोलियोज, मगर रिश्तेदार नहीं होते। सवाए इस कॉमन फीचर के, इस कॉमन कैटेगरी के, उनके दरमियान कोई रिश्ता होना जरूरी नहीं है। पोर्टफोलियो ऑफ प्रोजेक्ट्स मे एग्जिस्ट विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज प्रोजेक्ट्स इन प्रोग्रेस। मतलब ये बात यूं समझ लीजिए कि जैसे हमने अभी बात शुरू में भी कर रहे थे कि जरूरी नहीं है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का बाकायदा डिसिप्लिन हो, बाकायदा एक पोर्टफोलियो मैनेजर भी एग्जिस्ट करता हो, ना भी करता हो। जो कोई भी प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन में चल रहे हैं दरअसल वो आपका पोर्टफोलियो है। आप अगर उसे प्रॉपरली मैनेज नहीं करें या अलग से कोई बंदा रखा नहीं हुआ उसको मैनेज करने के लिए, तो हम कहेंगे ये अनमैनेज पोर्टफोलियो है, लेकिन पोर्टफोलियो तो फिर भी रहेगा ना। So it is comprised of the set of initiatives that may or may not be related. Initiatives कहते हैं प्रोजेक्ट्स को, प्रोग्राम्स को, किसी भी चीज को हम इनिशिएटिव कह सकते हैं, किसी वर्क को भी इनिशिएटिव कह सकते हैं। तो यहां पे इसका मतलब कंपोनेंट या प्रोजेक्ट्स या प्रोग्राम्स हैं। So it is comprised of set of initiatives that may or may not be related, interdependent or even managed as a portfolio. और पहले से मैनेज नहीं भी हो रहे लेकिन हम उसको पोर्टफोलियो कह सकते हैं। Projects may have been created by management effort to benefit one part of the organization without regard to overall strategic objectives or risks.
वो कह रहा है कि जी प्रोजेक्ट जो हैं ऐसा भी मुमकिन हो सकता है कि वो किसी चीज को मद्देनजर रख के ना बनाए गए हों, उनके पीछे कोई बेनिफिट ना हो, कोई मैनेजमेंट एफर्ट स्ट्रेट अवे ऊपर से हुक्म आया ये काम कर दो, इस तरह से प्रोजेक्ट को जन्म दे दिया गया हो। अगर ऐसा है तो कौन है जो इसके ऊपर नजर डालेगा और देखेगा और इसकी वायबिलिटी को चेक करेगा? अगर प्रॉपर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का डिसिप्लिन एग्जिस्ट नहीं करता तो इन चीजों को कोई भी नहीं देख पा रहा। इसका मतलब है बहुत सा काम आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा हो रहा होगा जो ऑर्गेनाइजेशन के को बेनिफिट नहीं दे रहा होगा, ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी के साथ अलाइन नहीं होगा, और वो सिर्फ जिसे कहते हैं ना वन स्ट्रोक ऑफ पेन से वो अहकाम जारी किए गए और प्रोजेक्ट शुरू हो गए। और इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल आपकी अपनी हुकूमत है कि जिसके अंदर बगैर किसी प्लानिंग के, बगैर किसी क्या कहते हैं PC1 के या फिजिबिलिटी स्टडी के, एट अ स्ट्रोक ऑफ अ पेन आप कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरू कर देते हैं और उसके बाद खत्म भी कर देते हैं। और इस बात से मतलब नहीं होता कि वो हमें कोई बेनिफिट भी देके जाएगा या उसने कंप्लीट भी होता है कि नहीं होता है। वो सिर्फ अब अगर आपकी फोटो खिंच गई है उसके इफ्तिताह के साथ तो मकसद आपका अचीव हो गया। दैट वाज द बेनिफिट, पर्सनल बेनिफिट। उसका प्रोग्राम का या प्रोजेक्ट का कंप्लीट होना वो आपके मकासद में शामिल नहीं था। With portfolio management, the organization is able to align the portfolio to strategic objectives. ये बात मेरा ख्याल है आप आराम से समझ लेंगे कि पोर्टफोलियो जो है वो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स के साथ अलाइन है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से टेक इनटू अकाउंट द रिस्क ऑफ कंपोनेंट मिक्स इन अ पोर्टफोलियो एट एनी गिवन टाइम. Components may be deferred by the organization when the risk of adding them to the current portfolio would unreasonably upset the balance and exceed the organizational risk tolerance. अब आप एक पोर्टफोलियो को बढ़ाते जाएं, इतना बड़ा कर दें कि वो फूल के फटने के काबिल हो जाए, आपके पास इतने रिसोर्सेज ना हो इस पोर्टफोलियो को हैंडल करने के, तो इस बात को सोचना चाहिए कि ये जो मैं काम पे काम बढ़ाए जा रहा हूं पोर्टफोलियो का, क्या इसको इस पोर्टफोलियो में डालना चाहिए या मैं अलग से कोई पोर्टफोलियो डालूं, या मैं रिव्यू करूं सारे प्रोजेक्ट्स को जो इस पोर्टफोलियो में एग्जिस्ट कर रहे हैं कि आया कि उनको वहां होना भी चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये असल काम, इसका मतलब है पोर्टफोलियो का हो ही नहीं रहा। नोबडी इज एक्चुअली प्रायोरिटाइजिंग दी प्रोजेक्ट्स, कोई बिजनेस केस ही नहीं बना रहा, बस जो कुछ आ रहा है उसे पोर्टफोलियो में धक्का दिए जा रहे हैं। ये उस सूरत में जब प्रॉपर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का कोई बंदोबस्त ना हो। अगर वो नेचुरली पोर्टफोलियो बन जाए तो इसको हम, ये प्रॉब्लम आपको होगी कि उसका पेट भरता जाएगा, वो मोटा होता जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली आपको ये पता नहीं चलेगा कि कब ये अपनी कैपेसिटी को पहुंच गया है और बेनिफिट नहीं दे रहा। सबसे बड़ी बात ये कि वो ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव को बेनिफिट नहीं कर रहा। अच्छा, ये भी मुमकिन है कि जितने भी प्रोजेक्ट इस वक्त किए जा रहे हैं वो सब स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव की अलाइनमेंट में हो, लेकिन बात यह कि हमारे पास इतनी फंडिंग ही अवेलेबल नहीं है, पैसा कम है, काम ज्यादा। तो इसका मतलब है प्रायोरिटाइज होना चाहिए था ना, ताकि सिलेक्टेड वर्क को पैसा मिले और बाकियों को ऑन होल्ड डाल दिया जाए, डेफर कर दिया जाए। पोर्टफोलियो इज अ स्नैपशॉट of organization's efforts in a program reflecting the organizational goal at the time the project were selected. तो ये एक झलक दिखाता है कि how well your programs are being managed. अगर पोर्टफोलियो का ही बेड़ा गर्क है तो आप प्रोजेक्ट क्या करेंगे और उससे बेनिफिट क्या लेंगे? तो उस हवाले से इन सब चीजों में आपका दोनों में ठीक होना जरूरी है। पोर्टफोलियो एंड प्रोग्राम मैनेजमेंट आपस में इंटरेक्ट करते हैं एज पार्ट ऑफ द रिलेशनशिप विद इन दी organization strategy and objectives. As the organization manages its portfolio, the programs are influenced by portfolio needs. प्रोग्राम के ऊपर क्या असर पड़ता है जनाब? पोर्टफोलियो की कौन सी जरूरियात हैं जो प्रोग्राम पे असरअंदाज होती हैं? प्रोग्राम पोर्टफोलियो का अपना ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी और ऑब्जेक्टिव्स हैं, प्रोजेक्ट के भी हैं। और आपको याद होगा कि पोर्टफोलियो में उसने कहा था कि इन्वेस्टमेंट को भी देखो, परफॉर्मेंस को भी देखो इन्वेस्टमेंट की, और जो बेनिफिट्स हैं उसके साथ कंपेयर करो, कितना पैसा लगा रहे हो क्या और किस चीज पे लगा रहे हो, बेनिफिट क्या है। तो बेनिफिट्स तो हमारे प्रोजेक्ट से निकलते हैं। फंड्स एलोकेशन, ये आपकी वो परफॉर्मेंस है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। रिक्वायरमेंट्स आपकी क्या है, टाइमलाइंस, कंस्ट्रेंट्स। तो ये सब चीजें जो हैं इनको मद्देनजर रखा जाएगा तो आप बेटर पोर्टफोलियो रिजल्ट दे सकेंगे, क्योंकि आपका प्रोग्राम बेटर रिजल्ट देगा। और इसको हम ट्रांसलेट करते हैं प्रोग्राम के स्कोप में, मतलब प्रोग्राम का स्कोप प्रॉपर बनना चाहिए, डिलीवरेबल्स डिफाइन होने चाहिए, बजट, स्केड्यूल वगैरह ये सब कुछ सही होगा
तो हम पोर्टफोलियो को ये एडवांटेज इन चीजों के थ्रू दे पाएंगे। डायरेक्शन ऑफ इन्फ्लुएंस, एक मिनट, प्रोग्राम और पोर्टफोलियो में डायरेक्शन ऑफ इन्फ्लुएंस जो है वो पोर्टफोलियो से प्रोग्राम की तरफ जाता है। बड़ी चीज क्या है? पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो असरअंदाज होता है बेनिफिट डिलीवरी में, ट्रांजिशन, बाकी चीजों में असरअंदाज होता है प्रोग्राम की परफॉर्मेंस पे। अगर फर्ज करें पोर्टफोलियो फैसला करता है जी इस प्रोग्राम को पैसे नहीं देने, इसको यहां पे स्टैंड स्टिल करवा देना है, तो प्रोग्राम मैनेजर की तो बेड़ा गर्क हो गया ना, उसका तो काम रुक गया। तो प्रोग्राम की बेनिफिट डिलीवरी, ट्रांजिशन, क्लोजिंग फेजेस वगैरह प्रोवाइड की डाटा टू द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट फंक्शन, और ये डाटा जो है इसके अंदर स्टेटस इंफॉर्मेशन होती है, परफॉर्मेंस रिपोर्ट, बजट, ये वो, अर्न वैल्यू का डाटा, ये सब डाटा पोर्टफोलियो के पास जाता है। पोर्टफोलियो उसको एनालाइज करता है और फिर ये फैसला करता है इस प्रोग्राम को मजीद फंडिंग जारी की जाए या ना की जाए, जिससे प्रोग्राम इफेक्ट हो सकता है। टाइप एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ दीज इंटरेक्शंस इज स्पेसिफाइड बाय द पोर्टफोलियो मैनेजर और गवर्नेंस बोर्ड। या तो गवर्नेंस जो आपको दी गई है उसमें बताया जाएगा कि पोर्टफोलियो को क्या क्या बातें बतानी है और कब कब बतानी है, या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट खुद आपको बताएगी, एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रोग्राम रिव्यू एंड अपडेट साइकिल। तो इस तरह आप ये देखते हैं कि प्रोग्राम और पोर्टफोलियो में कितना गहरा रिश्ता है आपस में। Portfolio is one of the indicators that reveals an organization's true intent, risk tolerance and progress. पोर्टफोलियो को देख के पता चलता है कि कितना बैलेंस पोर्टफोलियो है, कितना काम और कितना कहना चाहिए स्टेबल आपका पोर्टफोलियो है, और यही इंडिकेट करेगा कि आपके यहाँ प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम्स कैसे चल रहे हैं। लेकिन फिर मैं उसी तरफ पॉइंट की तरफ आता हूं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर पोर्टफोलियो एग्जिस्ट नहीं करता, वहां पे तो ये बातें हो नहीं सकती। सो पोर्टफोलियो एक अलग जरूरत है, वो होना चाहिए। बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, खासतौर पे कॉर्पोरेशंस जो हैं, जो कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं, वो अपने अंदर पोर्टफोलियो रखते हैं। लेकिन मैंने ये देखा है कि पोर्टफोलियो, प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो की जरूरत से पहले उन्हें फाइनेंशियल पोर्टफोलियो की जरूरत पड़ती है। ज्यादातर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, खासतौर पे बैंक्स और जो फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो फाइनेंशियल पोर्टफोलियो को ज्यादा इंपॉर्टेंस देती हैं। मगर अगर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हवाले से देखा जाए तो प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो इज आल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां पर भी इट इज वेयर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आर मेड। यहां पे भी हम इन्वेस्टमेंट से डील कर रहे हैं, रिसोर्सेज की एलोकेशन है, प्रायोरिटीज की आइडेंटिफिकेशन है क्योंकि प्रायोरिटाइजेशन जो करते हैं हम यहाँ पे, इफ द स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन चेंजेस, पोर्टफोलियो को री एग्जामिन करना पड़ता है और सारे का सारा रुख उसके हिसाब से बदलना पड़ता है। और क्यों स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन जो है ऑर्गेनाइजेशन का वो चेंज होगा? क्योंकि मार्केट की कंडीशन चेंज होंगी, ऑर्गेनाइजेशन का फोकस चेंज होगा, कंपटीशन बदलेगा, आपका जो आपके मुकाबिल हैं वो अपनी अप्रोच या वो लोग खुद बदल जाएंगे, या आपके एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो इम्पैक्ट होंगे। इन तमाम चीजों से आपका असर पड़ सकता है। पोर्टफोलियो सिलेक्शन प्रोसेस इज रिविजिटेड। ये जो हमने सिलेक्शन प्रोसेस बनाई अपनी स्ट्रेटजी के मुताबिक कि जनाब पोर्टफोलियो में कौन से प्रोजेक्ट को प्रायोरिटी हाई दी जाए, किसको कम दी जाए, इस सिलेक्शन प्रोसेस को या इस क्राइटेरिया को हम बार बार रिविजिट करते हैं और रिवाइज भी कर सकते हैं टू इंश्योर कि पोर्टफोलियो कंपोनेंट्स जो हैं दे कंटिन्यू टू बी वायबल। देखें ना, अगर स्ट्रेटजी बदल जाती है, जैसे उन्होंने बात की कि इकोनॉमिक के ऊपर हमारा क्या जोर होगा, शुरू में इकोनॉमी में बड़ा जोर था, बाद में आपने कहा कि नहीं जी ये जरा थोड़ा सा कम कर दो जोर, तो इसका मतलब है कि प्रायोरिटी चेंज होगी ना आपकी। जब प्रायोरिटी आपकी बदलेगी तो सिलेक्शन क्राइटेरिया भी बदलना चाहिए। तो हमने मुसलसल वायबल रखना है, तो उस वायबल रखने के लिए बदलते हुए हालात के साथ हमें उसको चेंज करते रहना है। पोर्टफोलियो ने भी अपने सिलेक्शन क्राइटेरिया को, अपने सिलेक्शन प्रोसेस को और उसके हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी के साथ अलाइन होते रहना है। When certain components of portfolio no longer satisfy the requirements, they may be cancelled. ऐसा अब ऑर्गेनाइजेशन ने अपना रुख बदल लिया, अब जो चीज पहले इंपॉर्टेंट थी अब इंपॉर्टेंट नहीं रही। ऐसा भी हो सकता है कि एक प्रोजेक्ट जो है वो बिल्कुल अनइम्पोर्टेंट हो गया है और हम यहां तक फैसला कर देते हैं, पोर्टफोलियो ये कह देता है कि फलाने प्रोजेक्ट को तो बंद कर दो। उसका प्रोजेक्ट मैनेजर या प्रोग्राम मैनेजर जो है वो चीखता रहे कि जनाब ये आप क्या कर रहे हैं, ये तो कंप्लीट होने वाला था काम,
वो कहेंगे जी नहीं, हम इसके ऊपर एक पैसा और नहीं लगाएंगे, दिस इज कंप्लीटली डन. When this occurs, resources associated with cancelled components are reassigned. Resources वहां से फारिग होंगे, उनको हम ज्यादा इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट्स हैं या प्रोजेक्ट्स हैं उनकी तरफ असाइन कर देंगे. ये काम भी पोर्टफोलियो का है. राइट जी. अगला टॉपिक हमारा इंटरेक्शन इन तीनों चीजों के दरमियान. लेट मी सी कि ये कितना बड़ा टॉपिक है, क्योंकि हमारे पास अभी 10 मिनट बचे. हाँ जी, अभी तक जो बातचीत की है इसके बारे में कोई कमेंट है तो बताइए. ये तो 2-1 स्लाइडें जी, ये हम कर लेते हैं और इसके बाद हम ब्रेक ऑफ कर लेंगे. अच्छा जी, इंटरेक्शन जो है उसके हवाले से वो कहता है जी डिस्टिंक्शन जो है प्रोजेक्ट, प्रोग्राम और पोर्टफोलियो के दरमियान, इनकी मैनेजमेंट के दरमियान कैन बी मेड क्लियर थ्रू देयर इंटरेक्शन, की आपस के इंटरेक्शन से ये बात वाजे हो जाएगी. पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ensures that programs and projects are selected, prioritized and staffed with respect to their alignment with the organization strategy. तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट तो ये चीज देख रहा है कि प्रॉपर सिलेक्शन हो प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम्स की, प्रॉपर प्रायोरिटाइजेशन हो, प्रॉपर स्टाफिंग हो, मतलब उसके रिसोर्सेज देने तक की वो जिम्मेदारी लेता है. प्रोग्राम फोकस करता है बेनिफिट्स की अचीवमेंट और अलाइनमेंट के ऊपर कि वो बेनिफिट पोर्टफोलियो को या स्ट्रेटजी को भी सेटिस्फाई करते रहें और साथ साथ वो बेनिफिट एग्जिस्ट भी करते हैं. प्रोग्राम के अंदर प्रोजेक्ट्स हैं और नॉन प्रोजेक्ट वर्क भी है और उसका फोकस है कि अचीविंग प्लान्ड आउटकम्स. सॉरी, आखिरी टर्म जो है ये प्रोग्राम नहीं, प्रोजेक्ट्स होनी चाहिए. प्रोजेक्ट्स जो हैं वो प्रोडक्ट की तरफ फोकस करता है और ये डायग्राम तो हम पहले कई दफा डिस्कस कर चुके हैं. तो आप ये देखें कि प्रोग्राम्स के अंदर भी सब प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं और पोर्टफोलियो के अंदर सब पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम एग्जिस्ट करते हैं और ये डायग्राम हम पहले कई दफा इस शक्ल में देख चुके हैं. राइट जी. अभी ये जो अगला टॉपिक है ये हम, मेरा ख्याल है, कल के ऊपर डालते हैं, क्योंकि इसमें फिर आगे बिजनेस वैल्यू भी आ जाएगी और रोल भी आ जाएगा. ये मेरा ख्याल कल पे डालते हैं जी. अभी तक जो बात हमने की है इसमें कोई अगर क्वेश्चन आंसर हो, क्लैरिफिकेशन हो तो वो बताइए. ठीक है सर. कोई ज्यादा थ्योरेटिकल तो नहीं हो गया? आपको तसल्ली हुई है या क्वेश्चंस वगैरह के आंसर आपको मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं? सर ये मतलब कोर्स ही ऐसा है, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, फिलोसफीज रहेंगी, उसमें से बहुत भी छलांग लगाएं तो पूरा तो समझ नहीं सकते फॉर श्योर. तो वो जहाँ जहाँ हमारी कंफ्यूजन आती हैं अपने अपने उसके मुताबिक हम क्वेश्चंस कर लेते हैं. जी बिल्कुल. तो ये ऐसा ही है जी. इसमें तो मेरा ख्याल है जितना भी समझ आ जाए बोनस है. एग्जैक्टली. अगर आपके जहन में कोई भी ऐसी बात आती है, बाद में भी कोई ख्याल आता है, तो आप उसको नोट कर लें पॉइंट को. कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास जब भी होती है मंडे को जब क्लास होगी, तो उसमें डिस्कस कर लें या आप मुझे ईमेल करके भेज दें तो भी मैं उसके ऊपर कुछ थोड़ा जवाब देख लूंगा उसका. हाँ सही है सर. क्योंकि एक्चुअली एटलीस्ट मैंने जो है जेन्युइन प्रोग्राम मैनेजमेंट तो की नहीं है. मेरा ख्याल है कि बाकी सारे भी जो हैं वो ऐसे ही हैं. तो इसीलिए बहुत सारी चीजों में हमें मुश्किल होगी, लेकिन जितने डिस्कस करते जाएंगे समझ आता जाएगा, हजम होता जाएगा आहिस्ता आहिस्ता. बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि वो इसका इस बात से कोई मैटर नहीं है कि आप एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं कि नहीं. वो तो एक अलग बात है कि आपने जैसी भी प्रोग्राम मैनेजमेंट किया आप एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं. तैयारी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मसला है कि आपकी जो प्रैक्टिसेस हैं वो शायद इसके साथ इतनी अलाइन ना हो. तो वो चीजें जहां जहां गैप है उसको समझ लें और मेरा ख्याल है कोई मसला नहीं होगा. आप इंशाल्लाह बेहतर तौर पे तैयारी कर सकते हैं. सर मैं एहसन की बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ, लेकिन उसमें ये भी पॉइंट है कि जैसा आपने अर्ज किया कि बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि ये जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं पीएमआई के, उनको एज इज फॉलो नहीं कर रही. आई मीन हो सकता है 70% फॉलो हो रहे हो, लेकिन नॉट एग्जैक्टली. तो उसके अंदर बहुत सी चीजें जो कि फिर हम उससे रिलेट नहीं कर पाते अपने प्रैक्टिकल इंडस्ट्री एक्सपीरियंस के साथ. तो वहां पे फिर वो गैप्स और प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो फिर क्रिएट करती है. एग्जैक्टली.
असल में ये ना इट इज मोर ऑफ आर्ट, साइंस से ज्यादा ये आर्ट है कि आपने किस चीज को, ये पेंटिंग कैसे करनी है। ये इस नॉलेज के साथ जो एप्लीकेशन आप करेंगे, जो शक्ल बनेगी वो हर एक बंदे की अलग अलग पेंटिंग है, एक जैसी दो पेंटिंग नहीं बनने वाली। तो इसलिए ये कोई वो नहीं है कि 100% कंसिस्टेंसी कभी भी नहीं आ सकती। उसमें प्रॉब्लम फिर यहाँ पे आती है कि शायद बाकी कैंडिडेट्स एग्री करें मुझसे कि इवन जब मैंने पीएमपी के एग्जाम क्रैक किया था, तो जो आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है, आप उस बेसिस से यू कैन नॉट आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दैट, यू हैव टू बी थ्योरेटिकल। जो भी आपने आपको पीएम बॉक ने या फिर पीजीएमपी के केस में जो हमें पीएमआई जो आर्टिकुलेट करती है, नॉट व्हाट योर इंडस्ट्री एक्सपीरियंस इज, वहां पे कहीं ना कहीं डिफरेंसेस होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखें होता ये है कि आप अपने तजर्बे को रखें एक तरफ, उसके आगे रखें नॉलेज, जो स्टैंडर्ड है या जो नॉलेज है वो उसके आगे रखें, और उस नॉलेज की ऐनक से देखें दुनिया को, और अपने एक्सपीरियंसेस को उसके अंदर सप्लीमेंट करें। अगर खाली एक्सपीरियंसेस की बेस पे आप एग्जाम देंगे तो यू विल श्योरली फेल। आपने ये बीच में ऐनक जरूर रखनी है, ये रंगीन ऐनक जो स्टैंडर्ड की है या नॉलेज की है, ये जब तक आप बीच में नहीं रखेंगे, इसके जरिए चीजों को, अपने एक्सपीरियंसेस को ट्रांसलेट नहीं करेंगे, आप पास नहीं हो सकते। और मेरा ख्याल है कि पीएमपी में इसका एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन तो आप देख ही चुके हैं, और इस प्रोग्राम मैनेजमेंट में ये डेमोन्स्ट्रेशन बहुत हाईलाइट होकर सामने आएगा। इसीलिए इसको कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सर्टिफिकेशन है। तो बहुत केयरफुली, मैं ये नहीं कह रहा कि आप पास नहीं कर सकेंगे, इंशाल्लाह आप जरूर पास करेंगे और पहले अटेम्प्ट में करेंगे, लेकिन सिर्फ मैं कॉशन दे रहा हूं कि होशियार होके, लाइटली नहीं लेना है इसको, ये हल्का नहीं लें इसको, ये बहुत इसके ऊपर अटेंशन देने की जरूरत है, सीरियस लेने की जरूरत है, इन अदर वर्ड्स। सर मेरी तरफ से एक सजेशन है जी कि जो है वो इसको जरा मजीद थोड़ा सा इंटरेक्टिव, क्योंकि जब मैं पीएमपी की प्रिपरेशन की थी तो उस वक्त जब वो रीता के क्वेश्चंस को जो है वो जी जी वो जब ट्रिक्स और ये हुआ थे, तो ऑफ कोर्स कि इसमें हम सब चीजें तो टाइम तो यही है जो है। तो आई वाज थिंकिंग कि अगर जो है वो हम एक लेट से आखिरी जो 5 या 7 मिनट है उसमें हम थोड़ी सी फीडबैक कर लिया करें, और थोड़ा सा ये भी कर लिया करें कि नेक्स्ट जो 2 आवर्स होंगे नेक्स्ट डे में, उसमें हम क्या रिव्यू करेंगे। जी 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 और उसके साथ जो है वो जो हमने पढ़ना होता है उसके मुतालिक आपको 2 या 3 कोई इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस जो है वो शेयर कर दें, जो कि जो है वो हम प्रेजेंटेशन में नहीं लेके आएंगे, वो हम बिफोर द लेक्चर हम अपने टाइम में उसको रिव्यू करेंगे, और फिर हम जो है उन ट्रिक्स को अपने ज़हन में रख के आपका जो है वो लेक्चर सुन रहे होंगे, ताकि हम उसको अगर हम फिर भी जो है वो आंसर में देखेंगे यार कि जो है वो सर ने ये बताया, तो अब मेरे ख्याल में ए भी ठीक और सी भी ठीक। ऐसा है जी कि अभी तो हम असल में शुरू शुरू में हैं, तो पहले 2 चैप्टर तो गुजर लेने दें, उसके बाद जब हम करेंगे तो मैं आपको हर चैप्टर के खत्म होने के बाद एक टेस्ट दिया करूंगा। वो टेस्ट जो है वो मैं इधर से आपको ऑनलाइन ही मिलेगा, आपने ऑनलाइन करना होगा, मगर अपने टाइम में क्लास खत्म होने के बाद आप तसल्ली से उसको कर सकते हैं किसी भी वक्त। जब आप उसे कर लेंगे तो उसका रिजल्ट मेरे पास आ जाएगा। तो इस तरह हम वो तकरीबन 20-20 क्वेश्चन हर चैप्टर के हम करते जाएंगे आखिर तक, और आखिर में फिर हम, और अगर बीच में आप चाहें तो उनको डिस्कस भी कर सकते हैं कि ये ऐसा क्यों है, इसका जवाब ये क्यों है। लेकिन ये है कि कोशिश यही करें कि ये चीजें आउटसाइड ऑफ द क्लास टेस्ट भी, और जो रीडिंग ऑफ स्लाइड्स है वो भी अगर आप करके आए तो हमें डिस्कशन का ज्यादा टाइम मिल जाएगा, क्वेश्चंस हों। मैं तो यही एंजॉय करूंगा कि अगर आप लोग क्वेश्चन करें और पढ़ा हुआ हो, और उसके हिसाब से फिर हम चीजों को एक्सप्लेन करें, तब ज्यादा मजा आएगा। सर वो जो 20 क्वेश्चन होंगे वो जो रियल एग्जाम क्वेश्चंस हैं उस टाइप के होंगे या सिंपल जो है वो 2 लाइनर्स टाइप के होंगे, और जैसे रीटा के थे ना क्वेश्चन, इस तरह के जो बेस्ट क्वेश्चन हैं ये वो हैं, और ये हैं, मैं जिंजर लीवन के क्वेश्चन में आपको दे रहा हूँ। ठीक ठीक। सो काइंडली सर उसमें थोड़ा सा कर दीजिएगा कि कितना टाइम एक्सपेक्ट करना है, ताकि जो है वो इट विल बी इजियर कि हम उसको अपने कैलेंडर में ब्लॉक कर सकें वो टाइम जो है, ताकि जो है वो इस 1 आवर 2 आवर्स थिंग्स 30 मिनट, आधा घंटा एक पेपर के लिए 20 क्वेश्चन करने के लिए मैक्सिमम 30 मिनट बहुत है, वैसे 25 मिनट बहुत है, लेकिन चलें आप 30 मिनट ले लें। ठीक सर ठीक। हाँ वो जब रियली ग्रेट। हाँ बिल्कुल।
सर आपके पास कोई सॉफ्ट कॉपी है इन बुक्स की, अगर शेयर कर सके तो? यार असल में मसला ये है कि प्रोग्राम मैनेजमेंट की किताबें चूंकि बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं होती, तो इसकी सॉफ्ट कॉपीज अभी तक आई ही नहीं है। मैंने एक्चुअली ये जो चीजें खरीदी थी, ये मैं इसलिए इनको बहुत ज्यादा रेफर नहीं कर रहा क्योंकि इनमें से कुछ चीजें ऐसी हैं जो वर्जन पुराना हो चुका है, तो वो मिसगाइड करने वाली बात हो जाती है। दूसरी बात ये कि इनके साथ एक आध किताब के साथ इलेक्ट्रॉनिक वर्जन भी आया था, वो अगर मैं देखता हूँ, लेकिन वो पुराना होगा ना, आप मिसगाइड हो जाएंगे। बेहतर यही है मेरे कि पास तो एक है इंजर 11 का, मैंने जो है ना एग्जाम चैलेंज डाउनलोड किया है, मेरे पास है। हाँ तो दूसरे जो है ना वो पुरानी वर्जन है जो आप कह रहे हैं, जैसा आप कह रहे हैं जी जी। तो अगर जदीद मिले या उनके पास हो, कोई उसके पास हो तो अच्छा होगा। भाई मैं ये समझता हूँ कि ये जो बातें हम कर रहे हैं ना, जिस तफसील से हम बात कर रहे हैं, इससे ज्यादा बेहतर आपको कोई किताब नहीं बताएगी। यहाँ आप क्वेश्चन भी करें, खोलें भी, हाँ अलबत्ता अगर ये कोर्स के बाद भी आपको कोई शक रहता है और आप कहीं और से कंसल्ट करते हैं, तो वो तो नॉलेज आपका वैल्यू ऐड ही करेगा ना। लेकिन अगर आप किसी एक सोर्स के ऊपर रिलाय कर गए, तो फिर ये जो डिस्कशन हमारी हो रही है, ये आपको फायदा नहीं देगी। तो इंशाल्लाह जो भी चीज मेरे सामने और भी आती रहेगी, मैं आपसे शेयर करता रहूंगा। वैसे मेरे पास काफी किताबें हैं प्रोग्राम मैनेजमेंट के ऊपर इलेक्ट्रॉनिकली, नॉट स्टडी गाइड्स, नॉट क्वेश्चन, बट किताबें हैं। वो मैं आप लोगों से शेयर कर लेता हूँ, बड़े अच्छे ऑथर्स की बुक्स हैं, वो मैं उधर ही ड्रॉप बॉक्स में कहीं डाल दूंगा और वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है सर। सर अभी मैं तैमूर, आपने कहा था कि आपके पास कोई आपने कुछ डाउनलोड किया कि एग्जाम चैलेंज वाला है जो सर ने बताया था, पेमेंट किया था। तो काइंडली आप उसका लिंक शेयर कर सकते हैं हमारे साथ में भी जो है। कर- चले, थैंक यू एक कॉमन जगह रख लें और उधर सारी चीजें रख लेते हैं। मुझे भी अगर कोई चीज ऐसी है, कोई आपको मिलती है, तो मेरे साथ भी शेयर कर लें, और वो फिर कॉमन जगह पे मैं रख दूंगा और उस तरह से बेहतर हो जाएगा। मेरे पास सर ड्रॉप बॉक्स में है, तो ईमेल चाहिए हो आप मुझे ईमेल तो करें, शेयर मैं करूँ। देखता हूँ उसको देख के, तो फिर मैं कर दूंगा लिंक। चलें जी, थैंक यू वेरी मच, टुडे वाज अ नाइस सेशन। और इंशाल्लाह अभी हम मंडे को मिल रहे हैं ना इसके बाद। जी सर, इंशाल्लाह। ओके जी, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, खुदा हाफिज। हाफिज।